Ma'am, we can start now. Yeah. जिग्नेश, आप फर्स्ट स्लाइड एनर्जी स्प्रेयर का डालेंगे? Yes, ma'am. Should I start, ma'am? Yes, yes. Okay. Good afternoon, respected Hi. President of our prestigious Obstetrics and Gynecological Society, Nagpur, Dr. Alka Mukherjee, ma'am, Secretary, Dr. Ashish Kubre, sir, respected chairpersons, Dr. Rajni Suryavanshi, ma'am, Dr. Savita Somalwar, ma'am, esteemed panelists, and my dear lovely audience. Namaskar. कोणाचा फोन आला तर उचलाल आणि जर बंद झाला ना तर असं करून त्याच्यामध्ये डब्ल्यू आहे माझा पासवर्ड. ठीक आहे, आता सुरू झालं. Am I audible properly? I think Yes. some different sounds are also there. You are audible. Yeah. जिग्नेश, Yes, ma'am. मैंने बाकी mute कर सबको- दिया. हाँ. आज Ma'am, 28 में should I मैम आप लोग continue? कोई स्क्रीन शेयर करने वाले हैं इसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. It's just a one-to-one chat show. ओके मैम, ठीक है. ओके. आज 28 मे 2021 रोजी आपण मेन्स्ट्रुअल हायजीन डे साजरा करतोय. या मागचे कारण असे, जागतिक पातळीवर हे करण्यात येत आहे याची काय गरज भासली असेल बरं? कारण मानसिक किंवा शारीरिक जी पिळवणूक होते स्त्रियांची या मासिक पाळीच्या काळामध्ये, त्याबद्दल मोकळेपणाने बोललं गेलं पाहिजे याची आपल्याला गरज भासली आणि ते महत्वाचं सुद्धा आहे. मग हीच तारीख का बरं निवडली 28 मे? तर याचं कारण असं की प्रत्येक स्त्रीची सरासरी पाळी एक 5 दिवस तरी चालतेच आणि ती दर 28 दिवसांनी परत येते. म्हणून इट्स कॉल्ड पिरियॉडिक मंथली ब्लीडिंग. म्हणून ही एक खास तारीख 28 मे. मी डॉक्टर दीप्ती किरतकर, कन्सल्टंट ऑब्स्टेट्रिशियन अँड गायनेकोलॉजिस्ट, सगळ्यांचे मनपूर्वक स्वागत करते या प्लॅटफॉर्मवर. बिफोर वी प्रोसीड, आय रिक्वेस्ट आवर प्रेसिडेंट अलका मॅम टू share few words of wisdom and address the gathering. Alka ma'am. Yeah. Before that, we will start with the energy prayer. May all we be content and satisfied. May ethics and morality be an integral part of our practice. May we show a mark of respect and reverence towards fellow colleague, that nobody indulges in moral crimes like medical jostling or female feticide. May we pay enough attention to our emotional and physical well-being. May patience and compassion be the fundamentals of our treatment and pathing. Let all to strive hard for the well-being of a mother. For a healthy mother equals a healthy nation. Together we will, together we can. Long live Energies. Thank you so much. Long live Energies. Yeah. So friends, hello everyone. I welcome you all for today's live chat on a very important topic, that is menstrual hygiene. Women and girls, they constitute half of the India's population. Yet gender disparities remain a critical issue in India, impacting the women and girls' education, health, and workforce participation. There are over 355 billion menstruating women and girls in India, but millions of women across the country still face significant barriers to a comfortable and dignified experience with menstrual hygiene management. We all know menstruation is a normal physiological process of a woman's body, but in our country, it is surrounded by many social taboos and myths. Film actors like Akshay Kumar, Amir Khan, and Radhika Apte, they tried to destigmatize the periods, but their efforts could not percolate deeper into the society. India has a long way to go ahead. There are so many important issues regarding menstruation. The issue of menstrual hygiene is directly linked to the reproductive health and many infections and cancer. Myths related to the normal physiological process make a woman's life more miserable. Sanitary pads, tampons, and other menstrual hygiene products are categorized as dry municipal waste under the Solid Waste Management 2016 Act. Dry waste means waste other than the biodegradable waste. Prolonged use of plastic-based these products has resulted in rashes, itching, skin sensitivity, and burning for many, leading to an uncomfortable experience.
Switching to eco-friendly sanitary napkins and cloth napkins is a natural progression for many menstruators. Biodegradable sanitary napkins, they can decompose in 6 to 12 months. Reusable cloth pad and menstrual underwear can be reused for a year or two. Menstrual cups, they are made up of medical grade silicone and they are reusable for 5 to 10 years. Just because the theme of this menstrual day, hygiene day this year is calling for more action and investment in menstrual health and hygiene now. This day is celebrated to break the taboos around surrounded the myths surrounding this important issue, raising awareness about periods and understanding the importance of good menstrual hygiene in our patients. Let's break the stigma. Let's talk about the periods. Let's break the myths and tell them the facts. Let's all remember and remind 3 C's over here. One is first C is for cleanliness, second is for cloth pad, and third is for menstrual cup. Wish you all a progressive World Menstrual Hygiene Day. Once again, I welcome you all. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you for the brilliant introduction to our today's panel discussion. Over the last few years, the discussion around menstruation, menstrual rights, and menstrual hygiene management have taken over a lot of prominence, especially in online forum. As the conversation have grown, the issue itself is slowly being unpacked and a significant light has been shed on number of intersections around menstruation, be it a stigma, education, healthcare, hygiene, rights, or economy. But we women strongly believe education dispels fear and prepare young girls to recognize menstruation as being natural process and face it with confidence. We all on this platform are here to discuss this year's theme, which is action and investment in menstrual hygiene and health. We have esteemed panelists with us. Before I introduce them, I would like to invite our chairpersons for today's panel discussion, Dr. Rajni Suryavanshi ma'am. Ma'am is a senior gynecologist, very active person. She is very energetic practitioner who is always ready to help patients and her colleagues at any orders. Welcome, ma'am. Our next panelist, Dr. Savita Somalwar ma'am. Dr. Savita Somalwar ma'am works as an associate professor at NKP SIMS, NKP Salve Institute of Medical Sciences. She is an undergraduate and postgraduate teacher with 24 years of teaching experience. Ma'am has many national and international publications to her credit. Ma'am is also certified instructor of American Association of Family Physicians, Advanced Life Support in Obstetrics, and Basic Life Support in Obstetrics. Welcome, Somalwar ma'am. Now, brief introduction of our panelists. We have a very brilliant panel today, friends. Our panelists, first, I would like to invite Dr. Namrata Rathod ma'am. Ma'am is a renowned practitioner, obstetrician and a gynecologist of our city, Nagpur. And ma'am is also a fitness icon. When we were students, we would just line up to just have a glimpse of ma'am, just to see how very delicately and with pride she carries herself. That was the aura she had some 30 years back. Dr. Trishala Dhimle ma'am is our, welcome ma'am. Our next panelist, Dr. Trishala Dhimle ma'am, is a well-known obstetrician and a gynecologist. Ma'am is a director of Shri Purva Maternity Hospital, Nagpur, a very active person in various organizations, contributing her for the betterment of women. And she is the right person who is a chairperson of awareness committee of the existing Nagpur Obstetrics and Gynecological Society. Right now, she is also working as a chairperson of awareness committee. Welcome, ma'am. Our third esteemed panelist, Dr. Milind Mandlik, sir. Sir is a renowned pediatrician and a neonatologist. Sir is a director of Colors Hospital. Sir believe in excellent patient care with special interest in preterm care and management. Welcome, sir.
Our next panelist, Dr. Swati Wagmare, ma'am. Ma'am is a consultant pediatrician, neonatologist, and adolescent counselor. Again, apt person to be here on this panel discussion. She is past president of Adolescent Health Academy of Nagpur 2020. An area of interest for ma'am is adolescent vaccination and adolescent psychology. We have one more vibrant figure with us, Mrs. Vaishali Wagmare. Mrs. Wagmare एक NGO चालवतात. या NGOचं नाव आहे समृद्ध जीवन. समृद्ध जीवन. I have one request, please. Yes, ma'am. I have one request. Can you speak in Hindi so that all state people can hear too very well? Yes. I have humble yes. request. Thank you, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. मैम एक एनजीओ चलाते हैं. इस एनजीओ का नाम है समृद्ध जीवन. समृद्ध जीवन का मुख्य काम है मासिक धर्म के दौरान इस्तेमाल किए गए जो इस्तेमाल में आते हैं सैनिटरी पैड्स, इसके बारे में ये जागृति निर्माण करते हैं. ये केवल एक या दो राज्यों में नहीं तो ऑलमोस्ट 14 स्टेट्स में इनका काम फैला हुआ है हमारी देश में. पैड्स के बारे में जानकारी देना, स्त्रियों को इसका महत्व समझाना, इसके लिए इन्होंने एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई है जो ऋतुकाल के नाम से प्रचलित है. सिर्फ शॉर्ट फिल्म ही नहीं तो मैम जगह जगह इंटीरियर्स ऑफ हमारे कंट्री में जाकर स्त्रियों को सैनिटाइजेशन का महत्व समझाने के लिए इवन पथनाट्य भी ऑर्गेनाइज करते हैं. और इस माध्यम से गांव-गांव तक मैम she is reaching almost those who are unreached. Such a tremendous work she is doing. मैं आपका स्वागत करती हूँ इस पैनल में. Thank you, ma'am. Menstruation, though it is a physiological process, many taboos are attached to it. That menstruation is a sin. It's a curse. It's shameful. As Alka ma'am has said in her introductory words, we have 355 million girls and women who menstruate, but only 18% could use sanitary napkins. And the remaining 82% still use unhygienic and unsafe methods like old cloths, rags, hay, sand, ashes, paper, or even tree bark and leaves. Isn't it very pathetic? So my first question goes to our panelist, Dr. Namrata ma'am. Menstruating comfortably is a matter of privilege. How true it is for our girls in our country? Ma'am, this question goes to you, Namrata ma'am. Thank you, Dipti. I remember years back, now we are postmenopausal, but then years back, that is almost 30, 35 years back, when we started menstruating, it was a little cumbersome because that time we wouldn't get pads. Sanitary napkins came much later. We used to have those cloths, and then basically that time it was a taboo. I think it still is. It is a taboo still in most of the section of the society. But I remember as a kid, when I used to go to the kitchen at my aunt's place, she would say, "Idhar nahi jana, kitchen mein nahi aana. यहाँ पर अचार को हाथ नहीं लगाना." This was a very and I was a little rebellious and I would say नहीं ऐसा क्यों, I mean क्यों ऐसा क्यों, ऐसा क्या गलत है इसमें, ये तो सब नेचुरल है. तभी से अपनी थोड़ा सा साइंटिफिक बैकग्राउंड तो रहता ही है, तो ये तो सब नेचुरल है, मैंने तो नहीं मांगा था ना, ये तो भगवान ने दिया है, तो फिर इसमें गलत क्या है. तो उस समय पर तब थोड़ा सा रिबेलियसनेस था और उस समय पर यही बोलते थे कि भाई जो कुछ भी हो रहा है वो हमने नहीं मांगा है, इट इज नेचुरल, जो हर लेडी को यू हैव टू गो थ्रू दिस. सो दैट टाइम दैट वाज द थिंग. अनदर थिंग, आई यूज्ड टू सी माय aunt who used to be in pain, and she was, you know, she was asked to 4-5 days, she was asked to stay in another room, not even allowed to be seen, and she was given a sack पे उनको वहाँ पे सोना पड़ता था. She was not allowed to be on the bed. She was not allowed to use the bed sheets.
सैक पे वो जो एक गर्म पानी की बॉटल वगैरह लेके, she used to be in pain, but she was not allowed to enter anywhere. So I have seen this. So when it comes to today's scenario, I feel that we are really privileged to be menstruating at this age, because first of all, sanitary pads, whether it's the cup, the she cup, or sanitary pads, or the disposable, not disposable, the cloth pads that are coming in now, and there is so much of awareness of it, and we have ready and good access to good flowing water, soaps, and all these things. In today's scenario, I feel, yes, that we are privileged to be menstruating at this point of time. So years back it was a taboo, and nowadays when there is so much of exposure to things, people have started talking a little openly about it. So right now it is a privilege, and moreover, when it comes to motherhood point of view, yes, as females we are much more than males. That is there. So we are definitely privileged to be menstruating in a way. And in this era, yes, now yes. But years back, it wasn't so. Thank you, ma'am. Thank you for this wonderful answer. But yes, in the interiors, there is lack of access to napkins, no proper water supply, no continuous water supply 24 hours. It makes them very difficult to change. They don't even have facility for uh, clean bathrooms and toilets where they can change. And also, if they really want to wash their clothes, because of non-availability of water, it also becomes very difficult for such girls to undergo this trauma during the period state. So moving on to our second question. Again, I would like to bring to your notice few more taboos, like menstruation is very dangerous for men. So the female at home in any household who is menstruating is just not allowed to touch any other person in the family, and especially for men. Otherwise, she being very impure during this period of time, she will spoil everyone. And few may also think that menstruation is a disease. In Jhabua district, menstruating woman is not even allowed to sleep on bed. As rightly Namrata ma'am has just quoted, she is also denied access to spicy food, not allowed to touch other members, especially men in the household. How very pathetic for such females. In Nepal, women are forced to sleep in hut which is outside the house, away from house, as she is considered as impure. So my next question is to Dr. Dhemre ma'am. When someone says that I am down now, how would you take this? Dhemre ma'am? Yes, I'm here. Am I audible? Am I audible? Yes, ma'am, you are audible. Audible. Okay. First of all, at this outset, I would like to thank the organizers, Dr. Alka Mukherjee and her team, NOGS 2021-22, for giving me this opportunity on this very auspicious day of Menstrual Hygiene Day. Thank you very much, all the organizers. Yes, the question is asked very rightly by our moderator, Dr. Dipti Kiratkar, that someone says, I am down. The thing is that it has become a fashion now, it has become a trend that girls, our teenagers, they are using different taglines for menstruation to tell very directly that I am menstruating or I'm having a period. So they use this tagline, and this tagline is very common, that I am down. And now this tagline is so common in entire world. So to keep it more secret, these girls, all teenagers, they have all college girls, even though the IT sector women are working, they have started putting some other taglines and want to keep their
menstruation as a secret. So they use many more taglines. Should I talk in Hindi or English? Because Vaishali ma'am. Ma'am, much better if you can talk in Hindi. Okay. Yes, ma'am, you can talk in Hindi as well. Yeah. All of you have my humble request, please talk in Hindi so that all my members can Yes. understood very Yes. well this topic. On the request of Vaishali ma'am and for the public awareness, Hindi is a better language. So to keep it more secret, यानी कि गर्ल्स अपना और जो पीरियड्स आता है menstrual period उसको और ज़्यादा secret रखने के लिए उन्होंने और बहुत सारी टैगलाइंस इस्तेमाल करना शुरू कर दी है. There are many more taglines like Red Army, monthly visitor, okay, like crimson waves in the abdomen, uterus, bloody body. And if a woman is married, so how she should convey to her family or to her husband that congratulations husband, you are not a father now. तो ऐसी सब चीजें थी लोगों ने इस्तेमाल में लाना शुरू की है. And these ways the people come to know, yes, she is menstruating. So this was the thing. And how would we counsel ऐसी गर्ल्स के साथ में, how would we counsel? The counseling is a very, counseling जो होता है यह बहुत ही challenging part है for parents, especially for parents whose जिनकी बेटियां menstruate होती है. अगर बेटी का menstruation आने से पहले अगर हम अपनी बच्चियों को काउंसिल करते हैं at the age of 8-9 years, if she comes across and if अगर वो देखती है कि उसकी माँ, उसके घर में उसकी मौसी या उसकी बड़ी बहन अगर कुछ टैम्पून यूज कर रही है, सैनिटरी नैपकिन यूज कर रही है और वो पूछती है कि व्हाट इज दिस, आप इसको क्यों इस्तेमाल कर रही हो, सो गो टू हर, सिंपली टेल हर दैट माय डियर चाइल्ड, योर मदर bleeds every month through her vagina, which is very important and it is normal, so need not to bother much. पर अगर वो लड़की और ज़्यादा hopeful है to know about this menstruation and if she is prepared mentally, you can go in more depth. But yes, counseling is a very challenging part and which really binds association between जो हमारी menstruating girls और parents के बीच में एक binding form करती है जहाँ पे हमारे बच्चे बहुत secure feel करते हैं. तो counseling in the form कि अगर हमारी बेटी को menstruation आया है, just go to her, ask her if she needs anything, is she comfortable, give her full attention. अगर वो crave कर रही है कुछ खाने के लिए तो please provide that food to her. Girls, हमारी लड़कियां बहुत ज़्यादा मीठा खाना पसंद करती है, like ice cream and chocolates are on the top, so provide her, give her a space. उसको अगर पसंद है तो give her a back massage, give her foot massage, which will be very stress relieving. If she wants to sit on your lap and if she feels more comfortable, let her sit on your lap. Just by holding their hands also, your children will feel more comfortable. They will feel more secure. So this way, and if she wants to see her favorite movie and you can sit along with her, please watch the movie. Talk on the topics which are favorite to her. Take her for shopping outside if she likes to. This way, we can make her more physically and mentally comfortable. When we are coming to the taboos, yes, Vaishali ma'am, you will definitely agree with me कि India is a traditional country. और हमारे इंडिया में जो ट्रेडिशंस है, कल्चरल नॉर्म्स एंड रिलीजियस टैबूज को मेंस्ट्रुएशन के साथ मिक्स करके लोगों ने उसका एक ट्रेडिशनल अकम्पनियन बना लिया है कि दिस मेंस्ट्रुएशन जो होता है एक एविल स्पिरिट है. एविल स्पिरिट मीन्स कोई भूत है, प्रेत है, कोई आत्मा है. पहले के समय में ऐसा ही कुछ होता रहा है. क्यों? क्योंकि gender discrimination was the first on the top. Lack of education to girls especially. There was silence of women. औरतें चुप रहती थी, उन्हें बोलने का अधिकार नहीं था. और पीरियड प्रॉपर्टी थी, पॉवर्टी.
Because of all these things, there was no easy access. हमारी जो women थी उनको कोई easy access नहीं था कि वो hygienic menstrual products को use करें. But yes, thanks to the scientific revolution, जैसे जैसे ग्लोब आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे साइंटिफिक रिवॉल्यूशंस होते गए, इसमें ये देखा गया है कि मेंस्ट्रुएशन एज अ होल हर घर में पहुंच चुका है, सोसाइटी में पहुंचा है, और नेशन ने इसको बहुत अच्छी तरह से दे हैव टेकन इट ऑन द प्लेटफॉर्म दैट कि एवरी गर्ल नीड टू मेंस्ट्रुएट, और वो लड़की मेंस्ट्रुएट होती है बिकॉज ऑफ हर हार्मोनल, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोनल इफेक्ट, और जो होना भी बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से उसके एग्स मैच्योर होती है, शी कैन बिकम प्रेग्नेंट. And we see that our ladies are nowadays, with this global revolution, they are more educated. They have become prime minister to president, from doctors to engineers, from astronaut to the pilots. And now no one can stop them at any position. The world is under their one control of access, and so many hygienic menstrual products are easily available at their doorsteps. Absolutely true, ma'am. Such a wonderful answer you have just put in your heart into this. Thank you so much. So the only thing, just now you said that they are ovulating, hence they are getting periods. So this only should make them be up and not down, because now they are capable of creation. So this is something which is so much unique to the girls. और इसके बारे में सोच के ही उन्होंने अपने आप को कभी भी डाउन नहीं फील करना चाहिए, हमेशा अप फील करना चाहिए. Yes, because of that only this menstruation have reached to all families, societies and nation, that they know the future nation is the girl. They are the future nation, and they can create this globe as a green, and they are the backbone of the families. So they are given the first importance in the family with this. I would also like to share that there is a small village in Karnataka wherein they celebrate a Keddasa festival, Keddasa or Keddaso festival, wherein they celebrate menstruation of Mother Earth for almost 4 days. Isn't it something good that a small village is celebrating such type of things? Though there are many taboos, there are few good things also. Yes, and these good things should be really celebrated worldwide. And nowadays we see, that in our family also, if somebody is menstruating, why to go to a village? It is in every families now. If anybody is menstruating now, our parents, our husbands, our in-laws are also taking care of us at the family level. And if we go into the society also wants to give us a comfort. They want Yes, to give ma'am, us absolutely. that treatment. You have already given me a point to ask another question to our esteemed panelist, Dr. Milind sir. Milind sir? Hello. Yes, sir. Yeah. Sir, talking so much about this sanitization, sanitary napkins, good facilities. Sir, आपको भी एक बेटी है जो अभी एडल्ट है. जब उसका पीरियड शुरू हुआ था, तब आपने उसको कैसे सपोर्ट किया था? फिर जब वो बड़ी होती गई धीरे धीरे, वो एक डॉक्टर की बेटी है तो उसको यकीनन सारी फैसिलिटीज अच्छे से मिली है. और जब आपने उसको कॉलेज में दाखिला कराया फॉर फर्दर स्टडीज, हम माँ बाप हमेशा अपनी बच्चियों के लिए सेफ्टी के बारे में सोचते हैं, हॉस्टल्स में अवेलेबिलिटी ऑफ फूड के बारे में सोचते हैं, उसको अच्छी रूम पार्टनर मिलेगी कि नहीं, उसकी अच्छी पढ़ाई होगी कि नहीं, इन सब चीजों के बारे में सोचते सोचते क्या हम कभी ये सोचते हैं कि मेरी बेटी को प्रॉपर क्लीन टॉयलेट मिलेगा क्या हॉस्टल में, क्या अच्छा बाथरूम मिलेगा क्या, 24 आवर्स वाटर सप्लाई मिलेगा क्या? सर, आपने कैसे काउंसिल किया जब आपकी बेटी बाहर पढ़ने गई, हॉस्टल में रहने गई? Thanks, Elogius, for giving me opportunity to speak on this platform. आपने सही कहा कि जैसे बेटी बड़ी होती है और मेंस्ट्रुएशन पीरियड शुरू होते हैं, तो एज अ फादर भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, क्योंकि अभी तक वो हमसे अटैच रहती है. और बीइंग अ पीडियाट्रिशियन
मैं शुरुआत से ही उसके साथ काफी अटैच रहा, इनर सिकनेस ड्यूरिंग वैक्सीनेशन एंड फॉर एवरीथिंग। तो ये पीरियड में भी मुझे उसके साथ बात करना मैंने समझा कि जरूरी है। आई हैड टू टेल हर दैट दिस इज फिजियोलॉजिकल, दिस इज सर समथिंग आपकी व्हिच आवाज इज, नहीं आ रही है। दिस इज समथिंग वेरी नॉर्मल एंड फिजियोलॉजिकल। अब आ रही है? हाँ, अभी भी नहीं हेलो आ रही है सर। हेलो, नहीं, हम लोगों को आ रही है। okay. So I had to tell her that this is very much physiological and normal. I think sir And has logged in from his car, so I think there is some दीप्ति network दीप्ति issue. आम्हाला हाँ, येतोय hello. बरोबर आवाज। या दीप्ति मैम, आप आपका रिमूव कर दीजिए, निकाल दीजिए उसको। दीप्ती Hello. दीप्तीला ऐकूच नाही जाते। दीप्तीला मी कॉल करते। ओके, यू कंटिन्यू। Okay, right. I'll continue. Yeah. So I had to tell her that you are now, there is a change from girlhood to womanhood, and it's a very much normal thing which is going to happen in your life. And what are the things which will be happening, and what precautions you should be taking. I had to converse with her. I had to tell her that you don't worry about it. You don't feel anything that this is something bad or something abnormal which is happening to you. फिर जब वो इंजीनियरिंग कॉलेज में गई और हॉस्टल में जाने का के दिन आ गए, so then I had my experience with my hostel, and boys hostel was the worst thing as far as hygiene and all the facilities are concerned. So we girls hostels used to be better than boys hostel. So thinking about it, I had to talk to her about this also, because जब भी लड़कियां घर पे रहती है और काफी कंफर्टेबल एनवायरनमेंट हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जब घर से बाहर निकलना है और हॉस्टल में बाकी सब लड़कियों के साथ रहना है और फैमिली सपोर्ट कुछ भी नहीं है, ऐसे वक्त ये चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि बाकी क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं लड़की को। तो एज डॉक्टर किरतकर मैडम सेड की फूड और ये सब तो हम लोग मैनेज कर लेते हैं, बट क्या हम ये सोचते हैं कि जब वो मेंस्ट्रुएटिंग रहेगी तब उसको क्या क्या तकलीफें सहनी पड़ सकती है। तो फॉर वन ऑफ द foremost thing which comes to mind is that availability of sanitary pads, because वो इजीली अवेलेबल रहना चाहिए, क्योंकि कॉलेज भी करना है, हॉस्टल में भी रहना है, बाहर जाने को टाइम मिले ना मिले, तो ये सब चीजों में सैनिटरी नैपकिन्स के अवेलेबिलिटी बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट मेजर इश्यूज। तो वेंडिंग मशीन है क्या वो हॉस्टल पे या उनके कॉलेज के प्रीमाइसेस में? आजकल गुड टू नो दैट देयर आर सो मेनी कॉलेजेस व्हिच हैव वेंडिंग मशीन इन देयर प्रीमाइसेस और एट देयर हॉस्टल्स। आजकल लड़कियां यानी माय डॉटर टोल्ड मी, डैड यू डोंट वरी, आई विल आस्क, I'll get the pads from Zomato or whatever, Amazon and all. So you need not worry about that. But I'll have stocks, proper stocks, and in case of any problem, I'll not go outside premises. I will ask, get it on some digital platform. So that was one of the issues. Other thing is, आजकल common toilets भी रहते हैं. Luckily, my daughter had three people used to share one toilet and all. So that was not the issue. But common toilet जहाँ रहता है वहाँ पे hygiene का सबसे बड़ा issue रहता है, क्योंकि टॉयलेट डेली क्लीन नहीं होते हैं, कोई प्रॉपर ये नहीं रहता है, लड़कियां सब साथ में रहती है तो उनकी थोड़ा मस्ती चलती रहती है, चलते रहता है, तो ये सब चीज़ों के मामले में ध्यान नहीं रखा जाता है। सो आई टू टेल हर दैट proper you should take care of that. In case of any problems you should call your warden or inform her that कि टॉयलेट क्लीन नहीं हो रहे हैं, तो उसके बारे में भी तुमने ध्यान रखना चाहिए। Third thing was disposing those used sanitary pads. That was one of the major issues, क्योंकि वो कहाँ डिस्पोज ऑफ करना है किसी को समझता नहीं है, दे डोंट नो कि कैसे करना है, क्या करना है, फिर वो कहीं पे कॉमन डस्टबिन में पड़े हैं या कहीं पे और जगह पे रख दिए जाते हैं, तो दैट बिकम्स पोटेंशियल हेल्थ hazard. So that also I had to tell her that ऐसा कहीं होता है तो you have to tell your friends कि ऐसा नहीं करना है तुमने, एक या ऑल ऑफ यू डिसाइड कि आप कहाँ डिस्पोज करोगे। अगर हॉस्टल फैसिलिटी नहीं रखता है या हॉस्टल में कोई ऐसा इसको डिस्पोज ऑफ करने वाले हैं, तो ये सब चीज़ों के बारे में आई हैड टू टॉक विथ हर
and counselor regarding it. Then another problem is continuous or regular supply of water. That is also one of the issues कि ये पीरियड में काफी वाटर सप्लाई और इसका भी इशू रहता है, तो हाइजीन मेंटेन करने के लिए वो भी एक इशू रह सकता है. That also I had to tell her. So all these things we need to talk to her, and in case कोई problem आता है तो I had asked her to get back to us so that we'll try to rectify and help her. Thank you, sir, Thank you. for this Thank you. wonderful answer. With this, I would also like you to share your views on certain taboos are being followed at every household. जैसे there is no entry in kitchen. Yeah. पानी के घड़े को हाथ नहीं लगाना, पूजा घर में नहीं जाना. Even the theme also needs Yeah. that Actually- we have to include many men to openly discuss this issue, because Right. there shouldn't be any gap in between, and there should have been very open conversation amongst all the members in the family, including a father and brother, younger or elder. Yeah, right. So if Basic- such condition comes in your household, how would you counsel counsel the because- female who is undergoing menstruation and being told not to do such things? How would you take it, sir? Right. Actually, and I was surprised, or I should not say, but कैसा होता है कि लड़की जब menstruating उनके एज में आ जाती है, तो मॉम और सीनियर्स उसको बताना शुरू करते हैं एंड ऑल. तो somehow to my surprise, elderly females only told her कि आपने ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए. तो रादर ये उल्टा होना चाहिए था कि फीमेल शुड हैव सपोर्टेड हर. तो उन्होंने बताना चालू किया कि आपको 4 दिन ये नहीं करना है, आपको डैड के बाजू में नहीं जाके बैठना है, आप कैसे भी अभी बड़े हो गए हो, डैड के साथ कैसे बैठते हो आप, ये सब चीजें शुरू हो जाती है. और ये 4 दिन में आपको ये सब नहीं करना है, आपको किचन में नहीं जाना है, या आपको पूजा के लिए बैठना नहीं है वहाँ पे आके. तो एक्चुअली आई हैड टू टेल माय डॉटर कि देखो ये सब नॉर्मल चीजें हैं और इसमें कोई एबनॉर्मल नहीं है, कुछ नहीं है. तुम्हें कोई जब तक पूछता नहीं है कि तुम्हारे पीरियड चल रहे क्या है, तो तुम्हें कोई बताने की जरूरत नहीं है खुद होके. तुम तुम्हारा हाइजीन मेंटेन करो, मन में साफ रखो कि ठीक है भाई, मैं जो भी हाइजीन मेंटेन किया है दिल से साफ रखो. ये कोई पाप पुण्य की कोई बात नहीं है इसमें, या तुम ऐसे कुछ करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. और यू कैन टॉक टू अस वेरी फ्रीली अबाउट इट. तुम मुझे बोल सकती हो, कभी लगता है कि डैड मुझे ये है, पीरियड चल रहे हैं, मुझे पेट दुख रहा है वगैरह, ये मॉम को ही बताने की जरूरत नहीं है. इवन आई कैन टॉक विथ यू और आई कैन ट्रीट यू. तो ऐसा जरूरी नहीं कि ये सब चीजें मॉम को ही बताना चाहिए. तो इवन एज यू सेड, राइटली सेड, कि ब्रदर, रोल ऑफ ब्रदर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. कि मेरा छोटा बेटा भी है, तो हमने ये कभी नहीं रखा कि उसको भी इसके बारे में कोई वो कुछ गलत बात कर रहा है या कुछ वो चिढ़ा रहा है, या ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए. बिकॉज और आज हम लोग देखते कि ही इज ऑल्सो वेरी सपोर्टिव. यानी उसको कभी मालूम रहता है नहीं कि कभी वो पेन होता है, ये होता है, या स्लाइटली डिस्टर्ब, तो वो सपोर्टिव रहता है. उसको मालूम रहता है कि इसका शायद पीरियड चल रहा है, तो ये शायद थोड़ी अपसेट है और पेन हो रहा है, कुछ हो रहा है. तो देन ही सपोर्टिव. वी विल नॉट से एनीथिंग बट ही विल सपोर्ट. कुछ हो रहा है क्या, मुझे कुछ लाके दो क्या, कुछ ये करो क्या, वो करो क्या, डैड को फोन करो क्या, ये सब होता है. एक इंसिडेंस बता दूं कि अपब्रिंगिंग में अपने को यानी सक्सेस कब समझेंगे हम लोग. तो वन डे माय डॉटर कॉल्ड मी एंड सेड कि डैड आप रात को क्लिनिक से वापस आओगे तो मेरे सैनिटरी पैड्स खत्म हो गए, तो आते आते लेकर आएंगे क्या. तो ऑन दैट डे आई फेल कि हाँ यार, अपन ने जो बात कही है वो शायद इसने जो भी किया है, मैंने अपब्रिंगिंग जो किया है वो सही किया है. आज वो कंफर्टेबली मुझे बोल रही कि हाँ मुझे पैड चाहिए और आप लेके आना आते आते. अदरवाइज उसको ये रहता था कि मैं डैड को कैसे बोलूंगी, क्या करूंगी. तो ये सब चीजें हम लोग ख्याल रख सकते हैं. और मैंने उसको ये भी बोला था कि मंदिर में जाते हो भगवान ये नहीं देखने वाला है कि आपका फिजिकल स्टेटस क्या है, ये क्या है, वो आपकी प्रार्थना और आपका फेथ देखने वाला है और कुछ नहीं देखने वाला है. तो इफ यू हैव गुड फेथ इन योर हार्ट, तो ये सब चीजें मायने नहीं रखती है. तो यू इग्नोर ऑल दिस थिंग. और कोई तुम्हें पूछता नहीं है तो यू डिड नॉट टेल देम कि मेरा पीरियड चल रहा है, मैं ये करूँ क्या, वो करूँ क्या. तुम बिंदास करो, जो करना है वो करो. तुम स्कूल जाओ,
उनको स्पोर्ट्स में एक्टिव पार्ट लेना है वो करो, इवन रिलीजियस को इसमें पार्टिसिपेट करते हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। Thank you, sir. You have been Thank such you. a wonderful father, not only a wonderful pediatrician, but a very good Right, right. father as well. Thank you so much, Thank sir. you. Thanks a lot. Thank Just now, sir said कि उनकी बेटी को जब सैनिटरी पैड्स खत्म हो गए थे तो उन्होंने अपने फादर को फोन करके पूछा, डैड आप आएंगे वापस तब मेरे लिए सैनिटरी पैड्स लेके आना। This promotes me to ask further question. मेरा अगला सवाल है मिसेस वैशाली वाघमारे मैडम के लिए। मैम, जब आप ऋतुकाल, आपका जो शॉर्ट वीडियो है उसके माध्यम से आप सैनिटरी पैड्स को कैसे घर घर पहुंचा रहे हैं, तो आप जब गांव में जाते हैं, अगर आपको दिखता है कि स्त्रियां अभी भी वही गंदा सा कपड़ा, राख, मिट्टी या पेड़ के पत्ते अगर इस्तेमाल कर रही है, तो आप कैसे इन कठिनाइयों का सामना करके उनको सैनिटरी पैड्स अवेलेबल करवाते हैं टू द रिमोटेस्ट प्लेस, एंड हाउ डू यू रीच द अनरीच्ड, जिनके पास ये साधन पहुंचाना, ये जो आप जिम्मेदारी का काम कर रहे हैं, वो आप कैसे बखूबी निभाते हैं? सबसे पहले तो मैं मुखर्जी मैडम को थैंक्स बोलूंगी कि मैडम ने आज मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बात करने के लिए मौका दिया है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है 14 स्टेट में जहाँ हम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव वर्क कर रहे हैं वो पूरे देख रहे हैं, और इसके आगे का जो भी कन्वर्सेशन होगा वो मैं सबको बोलूंगी कि प्लीज टॉक इन हिंदी, सो दैट, क्योंकि इंग्लिश जो है सबको कन्वीनियंट नहीं होगी, ठीक है, तो उसके लिए मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी। और आपका जो क्वेश्चन है, ऋतुकाल जो शॉर्ट फिल्म तैयार की है हम लोगों ने, वो सभी ने देखनी चाहिए। एक बार मैं शेयर करूंगी उसको। एक्चुअली हम लोगों ने ओपन अप करके चैनल तैयार किया है, लॉकडाउन की वजह से उसको हमने लॉन्च नहीं किया, उसमें उसको डालने वाले थे ऋतुकाल को डालने के बाद फिर उसको प्रमोट करने वाले थे। मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगी कि ऋतुकाल जो शॉर्ट फिल्म हम लोगों ने 2019 में तैयार किया है, उसको ICA अवार्ड भी मिला है, इंटरनेशनल कल्चरल आर्टिफैक्ट 2019, क्योंकि उसमें जो थीम दी है, उसमें जो सेम मंडलिक सर ने जो बताया है कि जो हम लोगों की रूढ़ी परंपरा है उसके ऊपर ओवरकम करके हमें कैसे उस चीज को आगे लेके जाना है कि ये चीज जो है वो अच्छी है, इसमें किसी भी तरीके की बुराई नहीं है, या फिर ये हमारे हेल्थ के लिए एक मेंसेस आना एक लेडीज के लिए गर्व की बात होनी चाहिए, उसको हम अपवित्र बिल्कुल किसी भी तरीके से नहीं बोल सकते। और उसमें हम लोगों ने एक रिलेशन भी बताया है कि ननद जो रहती है, उसकी जो भाभी रहती है, भाभी और ननद के बीच का एक रिश्ता बताया है, और उस रिश्ते में ये बताया है कि जो ननद है, उस ननद को लड़का मतलब कोई भी ये नहीं रहता है, इशू नहीं रहता है, और जब उसको इशू होता है और उसको लेने जाने के लिए वो जाती है, बट तभी एट दैट टाइम उसको मेंसेस स्टार्ट होता है, और जब वो बच्चा घर आने वाला रहता है तो घर आते समय उसका जो ये है पूजा वगैरह करके उसका वेलकम करना है, तो वेलकम वो नहीं कर पाती, तो वेलकम ना कर पाने की वजह मैडम आप अनम्यूट करिए, आप म्यूट हो गए हैं गलती से। ओके 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 मैडम, अब आ रही है आवाज? हाँ, अब आ रही है। ओके, आई डोंट नो मैं कहाँ पे थी, मैं ऋतिकाल के बारे में बता रही थी। यस, तो ऋतिकाल में हम लोगों ने ये बताया है कि आप एक तो पहली चीज कपड़ा मत यूज करो, एक ट्रेडिशन के बारे में भी बताया कि जो पूजा उसको करनी थी, तो पूजा जब उसके ननद के लड़का होता है ननद को, तो वो लड़का ले नहीं पाती क्योंकि वो उसके पूजा नहीं कर पा रही थी, और पूजा ना करने की वजह से सेम टाइम उसको मेंसेस स्टार्ट हुआ, और मेंसेस स्टार्ट करने की वजह से उसको गिल्टी फील हो रहा था कि मैं पूजा कैसे करूं, तो वो भी चीज को वहां पे हम लोगों ने बताया। और सेकेंडरी जो कपड़ा यूज कर रही थी, जैसे पुराने जमाने में ऐसा होता था कोई भी चादर का कपड़ा या जो भी मतलब एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, है ना, ये फैक्ट सभी को पता होगी मतलब, और अभी भी गांव में ये चीज होती है कि जो पुरानी मतलब जिसको फेंक देते हैं उस कपड़े को निकालते हैं, फिर उसको पैड के इस पे यूज करते हैं, और फिर मतलब ऑलरेडी वो इतना इन्फेक्टेड रहता है कपड़ा, हम नहीं बता पाते कितना भी वॉश किया रहे या जो भी है, और उस कपड़े को यूज करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ दिस क्लॉथ हम लोगों ने उसमें ये बताया कि आप पैड यूज करो, और फिर बाकी जो भी उसमें एक बताया है, इमोशंस है, सारी चीजें हैं, दैट्स व्हाई वी गॉट अवार्ड दैट शॉर्ट फिल्म। और
ये फर्स्ट थिंग। सेकेंडरी आपका कहना ये था कि अनरिच्ड जहाँ कोई पहुंच नहीं सकता वहाँ प्यार कैसे जाएगा। ठीक है, हम लोगों का जो वर्क है, जैसे आसाम है, उड़ीसा है, तेलंगाना है, या जहाँ जहाँ हम लोग गए, आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे स्टार्टिंग में आपने बताया कि ऐश यूज करना, ये पहले नहीं होता था मैम। अभी भी आसाम साइड में जाओगे आप, उड़ीसा साइड में जाओगे, तेलंगाना साइड में जाओगे, तो उन लोगों का जो कल्चर है वो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करता। उनकी जो टेंडेंसी बनी हुई है इस चीज को लेके कि वो जो मेंसेस का ब्लीडिंग रहता है वो कहीं छूना नहीं चाहिए, किसी ने उसको देखना नहीं चाहिए। तो वो उनका जो क्लॉथ रहता है उसमें अभी भी ऐश लेते हैं, न्यूज़पेपर्स लेते हैं, और उस पे वो जो ड्रॉप्स है वो उसको फिर वो कहीं बहारेंगे या फिर मिट्टी में ये कर देंगे। मतलब हम कितना ये करने की कोशिश करेंगे, तो उन लोगों की जो मेंटालिटी है उस मेंटालिटी को धीरे धीरे हमें इम्प्रूव करना है, चेंज करना है। उसके लिए मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये एक दिन का काम है या फिर सडनली 2 दिन में हो जाएगा। तो जो हम लोग स्ट्रिक्ट प्ले कर रहे हैं, Vaishali ma'am, not audible. या जिग्नेश, मैम शायद वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। अच्छा। Dipti, you start with देखिए। some other one, other panelist. यस मैम। अभी जैसे वैशाली मैम बात कर रहे थे कि ये जो हमारी रूढ़ी परंपराएं हैं ये इतने जल्दी बदलने नहीं वाली है। वही अनहाइजीनिक कंडीशंस में अगर फीमेल्स को मेंस्ट्रुएट करना पड़ता है तो दिस अनहाइजीनिक कंडीशन कैन गिव राइज टू मेनी डिसीजेस। अब इन बीमारियों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। मेरा अगला सवाल है डॉक्टर स्वाति वाघमारे मैडम को। मैम, yes. Am I audible? यस मैम, यू आर ऑडिबल। अगर अनहाइजीनिक कंडीशंस रहती है and the menstruating female is not able to get the proper sanitary pads or proper method of using it during her menstruation, what diseases she can have, she can get? So First of all, मैं NOGS नागपुर 2021 टीम प्रेसिडेंट डॉक्टर अलका मुखर्जी और उनकी टीम को धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ पे आपसे वार्तालाप कर सकूं। सबसे पहले तो हर एक स्त्री का मूलभूत अधिकार है कि उसको हाइजीनिक वे में she should menstruate. That is the fundamental right of every woman. और इसके लिए शुरुआत जब वो बढ़ती उम्र में आती है तब से उसकी शुरुआत होनी चाहिए। जैसे कि डॉक्टर मिलिंद मंडलिक ने बताया कि ही एज अ फादर उनका कितना इम्पोर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया है, तो उसी तरह से जब बच्ची 10 साल की होती है उस वक्त पेरेंट्स ने यानी माता एज वेल एज पिता दोनों ने मिल के बच्चे से बात करनी चाहिए कि अभी वो माहवारी उसकी चालू होंगी तो उसके बारे में उसको बताना चाहिए और उस दौरान क्या क्या केयर लेनी चाहिए उसके बारे में बताना चाहिए। तो पेरेंट्स का एज वेल एज टीचर्स का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रॉपरली कैसे मेंटेन करना, ये लड़कियों को सिखाना। तो स्कूल्स आल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। स्कूल्स में भी उसके बारे में बच्चों को जानकारी देनी चाहिए और पेरेंट्स ने भी खुल के, जैसे डॉक्टर मंडलिक खुद डॉक्टर है और शहर में रहते हैं, उनका एक्सपोजर उस हिसाब से, इसलिए उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी लड़की को सब समझाया। उसी तरीके से सब शहरों में बाकी के भी पेरेंट्स ने ऐसे खुल के अपने बच्चों से बात करनी चाहिए। तो अगर बच्चे को पता नहीं है कि किस तरह से हाइजीन मेंटेन की जाए, शहर में काफी लोग सैनिटरी नैपकिन यूज करते हैं, पर क्या उसके बावजूद उनको इन्फेक्शंस की रिस्क रहती है? हाँ, बिल्कुल रहती है, जरूर रहती है, क्योंकि सैनिटरी नैपकिन सिर्फ होना जरूरी नहीं है,
उसको दिन में कितने बार, कम से कम 2 बार बदलना चाहिए। बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो है तो ज्यादा बार भी हर 4-6 घंटे में बदलना चाहिए। अगर सैनिटरी नैपकिन्स नहीं यूज करते हैं, कपड़ा यूज करते हैं, तो वो भी अच्छे से धोना चाहिए। पहले के जमाने में तो ऐसा था कि वो बात किसी को पता नहीं होनी चाहिए, इसलिए चुपके से अंधेरे में धोना और उसको सुखाना, तो वो भी ऐसे जगह पे कि जहाँ पे किसी को दिखे ना, तो फिर वो अच्छे से सूखता भी नहीं था। ऐसे अगर गीला कपड़ा रहा तो उसमें बहुत सी इन्फेक्शंस, उसमें ही इन्फेक्शंस हो सकते हैं, और वही कपड़ा यूज करने से यूरिन के इन्फेक्शंस और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस भी, यानी बच्चेदानी के भी इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो इसलिए ये जानकारी भी बच्चों को देना बहुत जरूरी है कि किस तरह से कपड़ा या फिर सैनिटरी पैड्स यूज करें। इसके बावजूद अगर उस वक्त प्राइवेट पार्ट्स की कैसी केयर लेना, ये भी बताना जरूरी है कि वो जगह धोनी चाहिए अच्छी। इसलिए अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो अभी बताए हैं कि हर जगह पानी अच्छे से होना चाहिए, टॉयलेट्स में पानी होना चाहिए, हाथ धोने के लिए फैसिलिटी होनी चाहिए। तो प्राइवेट पार्ट्स साफ सुथरे धोने चाहिए। और उसके बाद ये जो ब्लड रहता है उसके थ्रू कुछ इन्फेक्शंस भी ट्रांसमिट हो सकते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस बी, HIV जिससे एड्स होता है, कुछ इन्फेक्शन कैंडिडियल इन्फेक्शंस या ट्राइकोमोनास इन्फेक्शंस, ये सब ब्लड के थ्रू जा सकते हैं। तो इसलिए जब सैनिटरी पैड्स यूज करते हैं या उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं, उस वक्त हाथ खराब हो सकते हैं और वो ट्रांसमिट हो सकते हैं। इसलिए सैनिटरी पैड्स को हाथ लगाने के बाद हाथ सोप से धोना चाहिए। इसलिए अवेलेबिलिटी ऑफ सोप और वाटर, पानी और साबुन का होना भी जरूरी है। बाथरूम टॉयलेट्स में अगर सैनिटरी नैपकिन्स प्रॉपरली डिस्पोज नहीं करते हैं, अगर वहां पे डस्टबिन है पर वो खुला है, तो उसपे मक्खियां बैठ सकती हैं, वहां पे मॉस्किटोज हो सकते हैं, उससे भी बीमारियां होती हैं। इसलिए वो डस्टबिन है तो वो कवर्ड होनी चाहिए। डस्टबिन नहीं है तो लड़कियां कहीं पे भी फिर वो या तो कभी पेपर में रैप करती है, कभी बिना रैप किए वैसे ही डाल देती है, उससे भी वहां पे इन्फेक्शंस फैलने के चांसेस बहुत होते हैं। अगर मेंस्ट्रुअल हाइजीन नहीं मेंटेन करते हैं तो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, उसकी भी रिस्क बढ़ती है। और बाकी के लोगों जैसे गांव में बोला है कि वहां पे अनहाइजीनिक प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, जैसे कि सैंड है, क्ले है या फिर कुछ पत्ते हैं, तो उससे भी यूरिनरी इन्फेक्शंस और वैरायटी ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो इसीलिए हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है और उसके बारे में जानकारी देने का काम माता पिता और टीचर्स ने खुले आम देना चाहिए। उसके बारे में जो भी किसी के मन में अगर वो दे नहीं सकते हैं तो वो डॉक्टर्स का, जैसे कि एडोलेसेंट फिजिशियन है या गायनेकोलॉजिस्ट है, स्त्री रोग तज्ञ है, ऐसे डॉक्टर्स की हेल्प लेनी चाहिए। वो स्कूल्स में प्रोग्राम कर सकते हैं, वहां पे बच्चों को जानकारी दे सकते हैं, और या इंडिविजुअल पेरेंट्स भी ऐसे डॉक्टर्स के पास जाके उनको एंटीसिपेटरी गाइडेंस दे सकते हैं। थैंक यू मैम फॉर दिस वंडरफुल इनपुट। लोकल एरिया में तो इन्फेक्शन हो ही सकता है, सूजन, लालपना या फिर ब्लिस्टर्स होना, फंगल इन्फेक्शन होना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन एज यू राइटली सेड। पर अगर उसकी तरफ ध्यान न दिया जाए और अगर यूरिन का इन्फेक्शन होता है तो वो किडनी तक भी पहुंच सकता है, पाइलोनेफ्राइटिस तक भी जा सकता है। और अगर genital infection if not taken care of, this can lead to PID, and further infertility can also be faced by such women who are not using hygienic methods for menstruation. I would like to share, ऐसा भी मैंने कहीं पढ़ा था
कि अगर किसी आदमी को गोनोरिया हो जाए और अगर उनके लिंग पे ब्लिस्टर्स आते हैं, तो the first thing he should do is he should go and have intercourse with a woman, so that he passes on the infection to her, and later on she can purge it off when she is menstruating. How very mean of the men in our society. But anyways, Very the pathetic. discussion, yes ma'am, the discussion further goes on with हमारी प्रॉब्लम्स यही खत्म नहीं होती, हम फीमेल्स की प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जाती है, विच आर नेवर एंडिंग. सैनिटरी पैड्स मिलना, हाइजीनिक मेंस्ट्रुअल फैसिलिटीज मिलना, हम यहीं पे नहीं रुकते हैं. तो हम जो पैड्स इस्तेमाल करते हैं उसके इस्तेमाल से जो कचरा पैदा होता है, अब उस कचरे को कैसे हमने संभालना चाहिए, इस कचरे से क्या क्या हमें नुकसान हो सकता है, कैसे पोल्यूशन बढ़ता है, इसके बारे में अब मैं डॉक्टर नम्रता मैम से अगला क्वेश्चन पूछना चाहूंगी. नम्रता मैम. मैं पहले क्वेश्चन में जब मुझे पहला प्रश्न पूछा गया तो मैं औपचारिकता में न पढ़ते हुए मैंने सीधा आंसर देना चालू कर दिया था. यस मैम. लेकिन अब मैं वहाँ पे थैंक यू टीम एनओजीएस, थैंक यू अलका, थैंक यू एवरीवन करके तो अब आगे वहाँ पे मैं बात करती हूँ. यस मैम. सैनिटरी नैपकिन्स, अपन ने टॉयलेट पिक्चर देखी थी, मैंने बहुत साल तक नहीं देखी और फिर फाइनली मैं बोली इतना क्या है इसमें, इसलिए मैंने टॉयलेट पिक्चर देखी. और उसमें वहाँ पे टॉयलेट जो बनाए जा रहे हैं अपने ऑल इंडिया लेवल पे, जो नेशनल प्रोग्राम है उसमें ऑल इंडिया लेवल पे टॉयलेट बनाए जा रहे हैं. ये भी फैसिलिटी एक तरह से अपने फीमेल्स के लिए ही बनाई जा रही थी, जिस तरह से सैनिटरी नैपकिन्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं अपने फीमेल्स के लिए, लड़कियों के लिए. तो इसमें अपनी भी एक नेशन के यानी अपने इंडिया के तरफ अपनी भी एक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जो हर लड़की अगर यूज करे तो 1 से 2 पैकेट ऑफ पैड अगर यूज करना चालू करे तो उसमें काफी कुछ, हर लड़की मेंस्ट्रुएट हो रही है तो हर लड़की का कुछ ना कुछ मेंस्ट्रुअल पैड्स भीगने के बाद में फेंकने में जाते हैं. अब ये जो मेंस्ट्रुअल पैड्स जो रहते हैं, सैनिटरी पैड्स जो रहते हैं, उसके नीचे एक प्लास्टिक लाइनिंग दी जाती है. ये प्लास्टिक लाइन से बाहर ब्लड आता नहीं है, लेकिन इसका जो रेपरकशन बोलो या उसका जो एनवायरनमेंट पे पूरे जो परिणाम जो हो रहा है वो ऐसा है कि ये जो प्लास्टिक अगर आप फेंक दो तो ये 500 से 800 साल तक ये डिके नहीं होता है, बायोडिग्रेडेबल नहीं रहता है. तो ये एनवायरनमेंट में प्रदूषण फैलाता है और जैसे के वैसा रहता है. अगर आप कोई हाईवे पे जा रहे हो, तुम देखते हो तो आजू बाजू हर जगह पे प्लास्टिक पड़ा रहता है. अपना अब कितने सजग हो गए अपन पता नहीं, लेकिन इतने में ट्रैवलिंग तो बंद है, लेकिन फिर भी प्लास्टिक इतना ज्यादा आजू बाजू देखने पे इतना बुरा लगता है कि ये प्लास्टिक कोई उठाने वाला भी नहीं है, और उठाए भी तो कितने लेवल पे उठाए और उसके बाद में ये बायोडिग्रेडेबल यानी उसका खत्म नहीं होता है प्लास्टिक, वो जमीन में वैसा का वैसा 500 से 800 साल तक रह सकता है. अब तो ये तो प्लास्टिक की बात हो गई, लेकिन अब टॉयलेट बन गया. टॉयलेट अभी बहुत सारे टॉयलेट्स बन रहे हैं, लेकिन टॉयलेट बनने के बावजूद भी अगर लड़कियों को ये ना समझे कि भाई जो सैनिटरी नैपकिन है उसको टॉयलेट में फ्लश नहीं करना है. अगर तुम टॉयलेट में फ्लश करती हो तो वो जाके टॉयलेट के जो पाइपलाइन रहती है उसमें फंस जाता है. वो कितना भी आप पानी बहाओ, एक के बाद एक पैड्स चले जाएंगे और पूरी तरह से टॉयलेट तुम्हारा ब्लॉक हो जाता है. ये ब्लॉक टॉयलेट को निकालने के लिए फाइनली बड़े बड़े आगे जाके कहाँ बड़े बड़े नालों में जाता है. नालों में जाने के बाद में वहां पर फिर अगर आप देखते हैं कभी बारिश होती है, कुछ होता है बड़े बड़े शहरों में, गांव का तो इतना मैं नहीं बोलूँगी आज, लेकिन शहरों की बात मैं ये बताती हूँ कि ये जो वर्कर्स जो रहते हैं इन्हीं लोगों को ये पाइपलाइंस वगैरह साफ करना पड़ता है. और ये पाइपलाइन साफ करने में उनकी हालत क्या होती होगी सोचो. जब ब्लॉक्ड है टॉयलेट, पूरा गटर है और गटर में उनको उतर के वो प्लास्टिक वाला जो सैनिटरी नैपकिन है ये सब जो है उसमें से निकालना पड़ रहा है. इस दौरान होता ये भी है कि कई बार जो लोग सैनिटरी वर्कर्स जो रहते हैं वो अपनी जान भी खो बैठते हैं, क्योंकि उसमें से जो पाइपलाइंस वगैरह जो है उसमें से
बहुत पॉइजनस गैसेस भी बाहर निकलते हैं। तो दैट इज ऑल्सो वन थिंग। और तुम सोचो बच्चे जो आजकल है, अगर इन लोगों ने अगर थोड़ा ध्यान दे तो अपन उसको मेंस्ट्रुएशन यानी जो महीना आना है वो गलत नहीं है, लेकिन महीने से जो पैड्स भीगते हैं, भीगने के बाद में वो खराब हो जाते हैं। खराब होने के बाद में जैसे वाघमारे मैडम ने अभी बताया, स्वाति मैडम ने बताया कि उसमें वहाँ पे उससे प्रदूषण तो फैलता ही है और बीमारियां भी फैलती है। तो उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करना जरूरी है। अगर उसी चीज को अगर तुम सोचो, अगर अपन ही खुद फेंक देते हैं, अपन ही हाथ नहीं लगाते हैं, तो दूसरा उसको हाथ कैसे लगाए? तो अभी बहुत सारे नए नए मेथड्स आ रहे हैं छोटी छोटी चीजें डिस्पोज ऑफ करने के लिए। एक छोटे लेवल पर ही यानी घर के लेवल पर ही उसको कैसे डिस्पोज किया जाए, नेट पे देखेंगे अपन तो बहुत सारी बातें मालूम पड़ेगी। और लोकल लेवल पर ही वो आगे ना बढ़ते हुए कैसे उसको डिस्पोज किया जाए, उसके भी इंसिनरेटर्स जो बोलते हैं, जहाँ उनको पैड्स को जलाया जाए। अगर पैड मेजर लेवल पे भी जलाए जाते हैं तो उससे पॉइजनस गैसेस निकलते हैं। फिर से अपना क्या कहते हैं एनवायरनमेंट, उसमें भी प्रदूषण फैलता है। तो हर चीज में अब इसीलिए बिकॉज उसमें नालों में भी प्रॉब्लम हो रहे हैं, तुम्हारे क्लाइमेट में भी प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो ऐसे इसमें अपने को पैड का इस्तेमाल कम होना चाहिए, उस पर ध्यान देना है। अब पैड का इस्तेमाल कैसे कम हो, उसके लिए आजकल नया जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है आगे, आजकल जो शी कप है ना, कप्स जैसे यूज होते हैं, वो उसके लिए आपको ज्यादा समझना पड़ेगा। इतना आसान है, एक बार समझ जाने पे आसान है, उसमें तुमको पैड्स यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से आई एम प्रिटी श्योर आगे ये बताने ही वाली होगी दीप्ति। आई डोंट नो दीप्ति कहाँ है तुम? तो दीप्ति ये पैड्स के साथ साथ में आगे पैड्स ही अभी अवेलेबल, ये जो शी कप जो अभी आ रहा है, 10 से 12 साल एक कप यूज होता है, उसमें पैड की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी तो अपने जैसे वैसे इंडिया में ये शुरू हुआ है कि भाई पैड्स ही अभी सप्लाई हो रहे हैं। तो मैं जो चाह रही हूँ कि भाई कप्स के बारे में लोगों को सजगता आए, शायद मेरा प्रीमेच्योर स्टेटमेंट होगा कि अभी से सबको समझे, लेकिन पैड से बेहतर कभी भी मैं चाहूँगी कि कप यूज होना चालू हो। इट इज जो जितनी बीमारियां ये सब जो अपन बात कर रहे हैं, रैशेस होना, फंगल इन्फेक्शन होना, ये सभी चीजें अवॉइड की जा सकती है अपार्ट फ्रॉम ये जो प्रदूषण फैलाना है। इसके कारण जो प्रदूषण फैल रहा है उसमें लेडीज रिस्पॉन्सिबल नहीं, लेडीज रिस्पॉन्सिबल है ना, लेडीज का वो किसी भी तरीके से बाहर फेंक देना जिसके कारण टॉयलेट्स ब्लॉक होना, ड्रेन्स ब्लॉक होना, गटर्स बंद होना और फिर लोगों की जान जाना, या तो फिर क्लाइमेट में प्रदूषण फैलना, ये सब चीजें उसमें मायने रखती है। और दिस इज हाउ, इसलिए अपने को इस तरह चीज की तरफ भी करना जरूरी हो जाता है। बागमार वैशाली मैडम, आप जब भी कुछ बोल रहे थे आपका बीच में कनेक्शन खो गया था, आप आगे। दीप्ति मेरी बात तो हो गई, कुछ वैशाली मैडम से मैं बोल रही थी कि उनका रह गया है कुछ बोलना, तुम देखो बात करो अभी। दीप्ति, you are muted. म्यूट पे हो तुम दीप्ति। अनम्यूट करा, अनम्यूट वैशाली मॅडम आणि दीप्ती दोघी पण अनम्यूट करा। दीप्ति तुम भी म्यूट पे हो, वैशाली मैडम आप भी म्यूट पे हो। अच्छा, साबळे करू शकतात का काही? यस मैम। दीप्ति तुम म्यूट पे हो, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? यू कांट? Dipti, unmute yourself. Yeah. Vaishali, unmute yourself. तो unmute करना Now चाहिए। it's done. अब अनम्यूट हो गए।
Thank you, ma'am. Suddenly, my Right. laptop had just was out of order, and now I had logged in with my mobile phone. Anyways, the show must go on. Vaishali, you can unmute yourself. Vaishali, you can unmute yourself. जिग्नेश, हम लोगों ने किया है क्या उनको? या हा मॅम आता झालंय अनम्यूट. ऍक्च्युली ते होस्ट कडनं अनम्यूट होतं. ऍक्च्युली इंटरनेटचा प्रॉब्लेम झाला का? हो मध्ये माझं जरा लॅपटॉप मधनं डिस्कनेक्ट झालं. मी आता मोबाईल थांबल्यावर तुम्ही ते प्लीज कंटिन्यू करा पुढे. राईट चालेल. ऍक्च्युली माझा टॉपिक सुरू होता आपला पॅड वरती, की तुमचा जो क्वेश्चन होता अनरिच्ड लोकांपर्यंत कसं पोहोचायचं. ओके, तर आम्ही एक थीम घेऊन जातो आहे. काही जे गावं असतात बघा, याच्यामध्ये आपण जे मेट्रोज आहे, मेट्रोमध्ये आपण आपल्या सगळ्या फॅसिलिटी अवेलेबल करून देतो, राईट. पण जर गावापर्यंत आपल्याला पोहोचायचं असेल तर, आणि गावामध्ये समजा एक एक्झाम्पल सांगते, एक मुलगी आहे आणि तिला अगदी मध्यरात्री पिरियड आला, तर ती कुणाकडे पॅड आणायला जाणार ना, कारण गावामध्ये मेडिकल नसतं, राईट. ऑल ऑफ यू अग्री विथ मी. गावामध्ये मेडिकल अवेलेबल नसतं किंवा कुठली फॅसिलिटी अवेलेबल नसते. मग कळत ना कळत तिला कापडच युज करावं लागेल, कारण कपड्याशिवाय तिच्याकडे दुसरं कुठलंच ऑप्शन नाही. मग अशा वेळेला ह्या सगळ्या सर्कमस्टन्सेसला लक्षात घेऊन आम्ही एक प्रपोजल तयार केलाय आमच्या एनजीओच्या माध्यमातून. जे गावं अतिशय इंटेरियर आहे, त्यांचा कॉन्टॅक्टच नाहीये, म्हणजे ते याच्यापर्यंत पोहोचू शकत नाही, मेडिकल त्यांना जवळ पडणार नाही किंवा अवेलेबिलिटी त्यांना, की ते त्यांच्या वडिलाला सुद्धा नाही सांगू शकत की मला लागतंय, कारण गावापर्यंत अजून हे सगळं अवेअरनेस आलं नाही. या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या मेट्रोमध्ये आल्या. तर मग आपण काय करायचं, आम्ही असं ठरवलं की काही गावं फक्त आणि फक्त पॅड करता, पॅडच्या अवेअरनेस करता, मेन्स्ट्रुअल हायजीन करता त्याला दत्तक घ्यायची आणि त्या गावामध्ये पॅड अवेलेबल करून द्यायचं. बरं, ही पॅड अवेलेबल कुठे करायची, तर पॅड अवेलेबल करायला आशा वर्कर्स आणि जे एज्युकेटेड असतात, ज्यांच्याकडे एक स्वतःला ते एक्सपोज करू शकतात. कारण गावामधलं जे मिथ आहे, गावामध्ये पॅड म्हटलं तर सगळ्यांना असं वाटतं की हा अगदी लाजीरवाणा विषय, म्हणजे साधं पॅड कपडा जरी त्यांना वाळवायचा असेल. हॅलो मॅडम, माझा आवाज येतोय? मॅडम सॉरी टू इंटरप्ट, आपण हिंदी मधनं बोलूया का? ओ सॉरी, मी स्वतःच एक्स्ट्रीमली सॉरी. मी स्वतःच विचारले की मला हिंदीत बोलायचं. काही हरकत नहीं मैडम. या ओके. मेरे सभी लोग और चिल्लाएंगे, बोलेंगे मैडम आपका फिर से शुरू हो गए मराठी में बात करना. हाँ, एक्चुअली हम लोगों का मैटर ये चल रहा था कि जहाँ पे पैड अवेलेबल नहीं है वहाँ हमें पैड को अवेलेबल करके देना है. तो इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक प्रपोजल तैयार किया है. देखिए, मेट्रो में क्या होता है कि मेट्रो में पैड अवेलेबल हो जाता है, वहाँ मेडिकल्स अवेलेबल है. जैसे हम लोगों ने ओवरनाइट 24 आवर्स मेडिकल अवेलेबल रहते, कितनी भी इमरजेंसी आई तो वहां जाके वो अपना पैड खरीद सकती है. लेकिन गांव में अगर पैड अवेलेबल करके देना है तो उसके लिए एक कंसेप्ट हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. वो कंसेप्ट ऐसा रहेगा, गांव को अडॉप्ट करना एक पैड के लिए, बस खाली एक पैड के लिए उसको अडॉप्ट करना उस गांव को, और उसका अवेयरनेस वहां पे ये करना. और अवेयरनेस के लिए क्या करना है, तो वहां पे जो हम लोगों ने बोला स्ट्रीट प्ले, जो जिसको हम पटनाट्य बोलेंगे, पटनाट्य लेंगे, पटनाट्य के माध्यम से वहां अवेयरनेस आएगा. अगर गांव में अवेयरनेस आ गया तो वहां उन लोगों को उस चीज को एक्सपोज करने में किसी भी तरीके की हिचकिचाहट नहीं होगी. ओके. और ये पैड जो अवेलेबल करके देना है तो उसको किस तरीके से करके देंगे, जैसे गांव में बचत गट की अध्यक्ष रहती है, वहां पे बहुत ह्यूज क्वांटिटी में उन लोगों का एक गैदर्ड रहता है, तो वहां उनको बोलेंगे कि आप अपने पास इस पैड को रखिए और जिनको चाहिए तो आप आपके पास से पैड को दे सकते हैं. और जो अवेलेबिलिटी रहेगी पैड की, वो अवेलेबिलिटी भी जो क्वांटिटी है, मान के चलते हैं गांव में एक 1000 लेडीज का एक गैदरिंग है, तो उस हिसाब से हमें एवरी मंथ का स्टॉक हमें वहां पे अवेलेबल करके देना पड़ेगा. वन थिंग. एंड सेकेंड थिंग इज दैट इसमें जो यूथ है वो भी पार्टिसिपेट हो सकते हैं. जरूरी नहीं कि मतलब यूथ जो है वो अवेयरनेस के लिए सबसे मेन चीज जो रहती है यूथ की रहती है. गांव में यूथ की भी क्वांटिटी उतनी ही महत्वपूर्ण है. उनको भी वो अपने जो मम्मी पापा है उनको समझा सकते हैं कि नहीं, जो पैड है, पैड के बारे में एक अच्छे तरीके से अवेयरनेस होना चाहिए. और जो चीजें हम अभी शेयर कर रहे थे थोड़ी देर पहले की, शहर में ऐसा होता है, मतलब अचार को हाथ नहीं लगाना, मंदिर में नहीं जाना, इन सब चीजों को हम गांव में बहुत बड़े इस पे देखते हैं. मतलब वहां तो ऐसा है कि 4 दिन अलग बैठना, और अभी भी इन सब चीजें शुरू है, वो कोई डिनाई नहीं कर सकता. और इतने
वो सारी चीजों में हमें जो बदलाव लाना है, वो बदलाव हम ये नहीं बोलेंगे कि आज और कल की इसमें आएगा। ये बदलाव लाने के लिए हमारे जैसे एक जितने भी एनजीओज है या आप जैसे जितने भी डॉक्टर्स है, उन सब लोगों ने यूनिटी से इकट्ठा आके इन सबको हमें अवेयरनेस के लिए इन्वॉल्व होना पड़ेगा और इन्वॉल्व होकर इसको आगे लेके जाना पड़ेगा। और एक चीज मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी, मेरा शायद कनेक्शन लूज हो गया था, स्टिल मैं मोबाइल पे देख रही थी कि पैड के जो क्वालिटी के बारे में बात चल रही थी कि किस तरीके का पैड यूज होना चाहिए। ठीक है, पैड में मैडम ने बात की थी कि जो भी ऊपर का लेयर है वो प्लास्टिक का लेयर रहता है, उसकी वजह से जो इचिंग होती है, इरिटेशन होता है। तो उसका एक एग्जांपल मैं बताऊंगी, आप लोगों ने शायद न्यूज में आई थी, एक बात सुना भी होगा। एक 9th क्लास की लड़की सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में, उसको मेंसेस आता है और वो स्कूल जाती है। मेंसेस आने के बाद सबको पता है कि जो ब्लीडिंग है वो ओवरफ्लो होता है, हो सकता है 2 घंटे में या 3 घंटे में उसका जो भी पैड उसने यूज किया वो पूरा मतलब ओवर ब्लीडेड हो गया, उसके कपड़े के ऊपर दाग आ गया। तो बच्चे जो रहते हैं, टीनेजर्स रहते हैं, तो जो लड़के हैं, लड़कों ने उसको चिढ़ाया कि देखो इसको मेंसेस आया है और अब मतलब जो भी व्हाटएवर। तो वो इतनी इरिटेट हो गई, उसको गुस्सा आया और उसने क्या किया, एकदम स्कूल के टेरेस पे जाके सुसाइड किया। तो अगर ये सब चीजें होती है तो हम इसके लिए किसको रिस्पॉन्सिबल बोलेंगे? मम्मी पापा को बोलेंगे, जो पैड तैयार करने वाली कंपनी है, जो मतलब जिसकी एब्जॉर्बन कैपेसिटी कम रहती है, या फिर उस लड़की को बोलेंगे। वो लड़की को तो उतना मतलब खुद को उतना समझ में ही नहीं आ रहा होगा ना कि एग्जैक्ट उसके साथ क्या हो रहा है, और वो एकदम से चिड़चिड़ा गई, उसको पता नहीं क्या हो रहा था क्या नहीं, बट उसने वो डिसाइड किया कि वो एकदम मुझे लड़कों ने कुछ बोला करके अचानक से उसने जाके छलांग लगा दी। ये फैक्ट है, पेपर में भी आया था, शायद से आप लोग में से किसी लोगों ने इस चीज को सुना भी होगा। तो मतलब हम इस चीज के लिए किस तरीके से अवेयरनेस ला सकते हैं? अगर हम कपड़ा यूज करते हैं तो कपड़ा भी कितना सेफ है ना? मतलब अभी जो एक फैक्ट आ रहा है कि कपड़ा भी यूज करना चाहिए। अगर पैड यूज करते हैं तो पैड भी किस तरीके का होना चाहिए? अगर हम पैड यूज करते हैं तो पैड में जो एब्जॉर्बन कैपेसिटी है वो एक अच्छी तरीके से होनी चाहिए। और बाकी जो टेम्पॉन है और जो एक मेंस्ट्रुअल कप, तो मेंस्ट्रुअल कप के बारे में भी मैं ये कहना चाहूंगी, अगर सबने मिलके इस चीज को ये किया कि नहीं, ये इसका अवेयरनेस होना चाहिए, लेकिन होगा, मैं ये नहीं बोलती कि नहीं होगा। इंडियन मेंटेलिटी जो है, इंडियन मेंटेलिटी को देखते हुए मेंस्ट्रुअल कप जो इंसर्शन प्रोसीजर है उसका, या जो भी आप लोग उस बात को समझ रहे हो, जो भी मुझे सुन रहे हो उनको भी समझ में आ रहा होगा, उस मेंस्ट्रुअल कप के इंसर्शन प्रोसीजर को अगर वो यूट्यूब में भी देखते हैं तो भी डर जाते हैं कि बाप रे कितना डिफिकल्ट टास्क है, हम नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली देखा जाए तो मेंस्ट्रुअल कप बहुत ही सेफ है बाकी सब चीजों को देखते हुए। उसमें यस मैम, दीप्ति मैम आप कुछ बोल रहे हैं, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो, मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि हमारे नेक्स्ट स्पीकर इसी बारे में बात करने वाले हैं, मेंस्ट्रुअल कप के ऊपर। ओके ओके ओके, थैंक यू मैम, आपके जो भी विचार हमारे साथ साझा किए उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर ढेमरे मैडम के लिए। जैसे वैशाली मैडम ने अभी बात छेड़ ही दी है, तो हमारा अगला क्वेश्चन उसी बारे में है कि हमें सस्टेनेबल मेंस्ट्रुएशन की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि इतना जो कचरा जमा हो रहा है एंड विच इज नॉट बायोडिग्रेडेबल, तो वी शुड बी रियली careful about the pollution we are spreading. So it's time that we should switch to sustainable menstruation. So a few days back we have enjoyed a movie named Padman, wherein Akshay Kumar was helping out his wife to provide better sanitary facilities to his wife. Or recently we have seen Meenakshi Bharat madam campaigning about menstrual cup. तो मैडम, क्या आपको ऐसा लगता है कि अभी कप के ऊपर भी एक मूवी बन जानी चाहिए पैडमैन के जैसी, कप वुमन? और हाउ प्रॉमिसिंग इज मेंस्ट्रुअल कप फॉर आवर फ्यूचर generations to come? Yes. Thank you, Dipti, for asking such an innovative question. Am I audible? Hello? Yes, ma'am, you're audible. Yes, ma'am. Okay, thank you, Dipti, for asking such an crucial, critical, and a very useful question.
Like I have been, what Namrata also said, it was very much right, and what Vaishali madam just now said, it's very right. But it's a high time. यह अभी काफी हो चुका है, बहुत हो गया है. हर किसी की जिम्मेदारी बनती है कि ये जो बहुत हो चुका है उसमें हर नागरिक की जिम्मेदारी है, हर एक ने हाथ बटाना है. अब ये जिम्मेदारी क्यों है? क्योंकि जितने भी हमारे पास आज की डेट में जितने भी हमारे पास रेगुलरली इजीली अवेलेबल मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स ओवर द काउंटर्स है, और हम सभी लोग टीवी देखते हैं और टीवी में एड्स बिल्कुल आती है मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स की. बिकॉज दिस कंपनीज दोज हु आर गिविंग जो ये ऐड करती है उनको $1 मिलियन उसमें से फायदा होता है, और उन्हीं चीज की ऐड की जाती है जिसमें बेनिफिट है. उन सब चीजों की ऐड नहीं कर सकते हैं जिसमें बेनिफिट नहीं होता है. इसीलिए हमें हाथ बटाना है. हमारे ग्लोबल वार्मिंग जो चल रहा है उसमें हमारे एनवायरमेंटल हजार्ड्स को रोकना है. वी हैव टू ब्रिंग द डाउनफॉल इन आवर डिस्पोजेबल हजार्ड्स, जिसमें अभी नम्रता ने बताया कि जो 4th क्लास वर्कर होता है वही सफरर होता है. उसको गटर लाइन, पाइपलाइन, चोकिंग, आवर कमोड्स, एवरीथिंग ही नीड्स टू क्लीन, वेयर जहाँ पे हम अपने पैड को भी हाथ नहीं लगाना चाहते हैं. और इन्फेक्शन रेट जो जेनाइटो यूरिनरी इन्फेक्शंस होते हैं उसको भी कहीं ना कहीं हमें पूरी तरह से कम करना है. तो हमारी एक जिम्मेदारी भी बनती है टूवर्ड्स एनवायरनमेंट कि हम इस एनवायरनमेंट को कैसा हम ग्रीन करें. हाउ टू मेक अवर ग्लोब अ ग्रीन. माय डियर गर्ल्स, आपका मेंस्ट्रुअल ब्लड जो होता है दैट इज ब्लड, दैट इज रेड, बट इट इज योर ड्यूटी टू गो ग्रीन. और इस गो ग्रीन में अभी हमने देखा, जस्ट आई विल पुट वन एग्जाम्पल. अलका मैम ने बोला है कि 355 मिलियन लेडीज मेंस्ट्रुएट करती है. अगर मैं उसमें की एक लेडी भी पकड़ती हूँ, एक लेडी पूरे अपने लाइफ टाइम में, फॉर हर एंटायर मेंस्ट्रुएटिंग लाइफ, शी नियरली वो यूज करती है रेगुलर पैड्स ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स. 11,000 to 15,000 पैड्स एक लेडी यूज करती है. तो हमारी 355 मिलियन लेडीज कितना गार्बेज, कितना डिस्पोजेबल हजार्ड्स को क्रिएट करने में मददगार है. दिस इज अ बर्निंग इशू. और जब हम देखते हैं कि आजकल कंपनीज, हमारे पास पैसा आ गया है, विद दिस मनी पीपल आर गोइंग फॉर मोर एंड मोर फैंसी थिंग्स. लोग बहुत फैंसी थिंग्स की तरफ जाने के लिए उनका हमेशा रुझाव होता है. और पेरेंट्स भी जो इजीली अवेलेबल चीजें होती है उसी को लाकर अपने बच्चे को सप्लाई करती है कि उनकी बच्ची को कोई डिफिकल्टी ना आ जाए. पर हमारा जो एक पैड हम यूज करते हैं उसकी जो प्लास्टिक लेयर होती है, और वो प्लास्टिक लेयर, एक पैड की प्लास्टिक लेयर इज इक्विवेलेंट टू 4 प्लास्टिक बैग्स. One pad, one plastic layer is equivalent to 4 plastic bags. So you think कि कितना हम अपने ग्लोब पर बर्डन डाल रहे हैं. और जितनी भी आजकल जो नई नई चीजें इन्वेंट हो रही है इन सैनिटरी नैपकिन्स, वहां पर कंपनीज उनको ओडर फ्री बनाती है विथ फ्रैग्रेंस. ओडर फ्री, फ्रैग्रेंस, मच अब्जॉर्बिलिटी. तो इसमें क्या होता है, इसमें केमिकल यूज होता है, और ये केमिकल which makes the pads odor free. They put the fragrance also. It is ultimately a chemical. जहाँ पर हमारी गर्ल्स को या हमारी women को इरिटेशन का सामना करना पड़ता है. It cannot be rash free. It cannot be irritable free. Yes, odor might go with the using of odor free napkins. तो हमारी एक जिम्मेदारी बनती है, why not to be parallel with the globe, parallel with the environment. तो इसमें
एक यूज हुआ है शब्द दैट इज सस्टेनेबल। और सस्टेनेबल का मतलब ये है कि जिससे हमारा ग्लोब, हमारा एनवायरनमेंट इको फ्रेंडली होगा। अगर हम ऐसी चीजों का इस्तेमाल करें जिससे हम अपने ग्लोब को इको फ्रेंडली बना सकते हैं, वी मेक आवर ग्लोब अ पीसफुल एंड अ लिवेबल प्लेस फॉर एवरीवन, देयर कम्स द सस्टेनेबल मेंस्ट्रुएशन। हम इस सस्टेनेबल मेंस्ट्रुएशन का मतलब जान लेते हैं। इट इज the word is comes in use. It refers to the use of environmentally friendly and uses of responsible eco-friendly menstrual products. Sorry, मैं इस चीज को हिंदी में नहीं बोल सकती हूँ, so I will go for some terminology in English. जब हम देखते हैं कि इको फ्रेंडली चीजें हमारे लिए क्या हो सकती है, ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो हमारे को सस्टेनेबल बनाती है, हमारे एनवायरनमेंट को। So many global revolutions have come into access. Many companies are working on it, but only thing is that it is not advertisement नहीं है इन सब चीजों की, इसीलिए यह प्रोडक्ट्स पब्लिक तक, कॉमन पब्लिक तक नहीं पहुंच पाती है। हम एक पैड यूज करते हैं, उसको थ्रो कर देते हैं, हम एक टैम्पून यूज करते हैं, उसको थ्रो कर देते हैं। बट व्हेन आई टॉक फॉर these products are, my dear girls, these products are reusable. आप इस प्रोडक्ट को बार बार इस्तेमाल कर सकती हो। तो कैसे? ये प्रोडक्ट्स क्या है? ये प्रोडक्ट्स है, फर्स्ट इज पैंटीज, दैट इज पीरियड पैंटीज। अब पीरियड पैंटीज का इन्वेंशन इसीलिए हुआ है कि जो लड़कियां, इट वाज एन आइडिया बिहाइंड, उसके पीछे एक आइडिया थी पैंटीज बनाने के पीछे, कि जो लड़कियां जीन्स पहनना चाहती है, एटलीस्ट अर्बन गर्ल्स जो जीन पहन के जाना चाहती है, उनके लिए दिस पीरियड पैंटीज हैव कम इनटू यूज। तो बट पीरियड पैंटीज में अगर लेडी को या गर्ल को बहुत हेवी फ्लो हो रहा होगा, तो उसमें दो चीजें करनी होगी। या तो उसमें लूप्स बने होते हैं, तो उसमें अपना सैनिटरी पैड डालना होगा जिससे एब्जॉर्बेशन ज्यादा होगा। अगर उसको जो है ब्लीडिंग कम होती है, तो यस, शी इज कंफर्टेबल विद द पैंटी लाइनर, शी कैन मूव एनीवेयर, शी कैन वियर हर जीन्स, हर चॉइस ऑफ क्लॉथ्स, अपने पसंद के कपड़े पहन के शी कैन गो एनीवेयर। पर पैंटी लाइनर्स के अंदर जब बात आती है कि एक और सैनिटरी पैड पहनना है, तो इट इज नॉट मच प्रोपोगेटेड और प्रमोटेड इन आवर कंट्री। सेकेंडली, अगर हम देखते हैं इस सस्टेनेबल मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट में कम्स द क्लॉथ पैड्स। यस, अब क्या हो रहा है, क्लॉथ पैड्स हमने हमारी मदर को भी देखा है, हमारी मदर ने हमको इनिशियली क्लॉथ पैड्स के ही साथ हमारी शुरुआत की थी। तो क्लॉथ, वी आर अगेन गोइंग बैक टू आवर ओल्ड डेज। Why this our mothers, our in-laws, our all elders were using cloth pads? क्योंकि cloth pads are reusable. They can be washed very nicely. They can be washed with the plain water, with detergent, again back to the plain water. They can be, उनको sunlight में हम सुखा सकते हैं. We can maintain the hygienicity with that. और वो reusable होते हैं। उसमें साइड में विंग्स भी आते हैं, जिनको हेवी ब्लीडिंग है, जिनको चाहिए कि लीक नहीं होना चाहिए, स्टेन नहीं लगना चाहिए, तो दे कैन यूज दिस क्लॉथ सैनिटरी पैड्स। Third comes into practice, and yes, globally it is available. पूरे ग्लोब में अवेलेबल है, that is innovative menstrual cup. Yes, you heard very rightly, that is menstrual cups. और ये इतने promising है, इतने promising है, they are, why there is a environmental hazard or a global warming? Because जितनी प्रोडक्ट्स आज तक हम यूज कर रहे थे, टैम्पून्स या सैनिटरी नैपकिन्स, ये जो है दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये डिकम्पोज नहीं हो सकती है, इनको 500 से 800 साल लगते हैं डिकम्पोज होने के लिए। बट menstrual cups are made up of 100% मेडिकल ग्रेडेड सिलिकॉन मटेरियल। अब इसकी ब्यूटी देखिए आप, ये जो मेंस्ट्रुअल कप है, ये बहुत सारे डिफरेंट साइजेस में आते हैं, स्मॉल, लार्ज एंड मीडियम। एक कप आपको 10 साल चलता है।
आपको जो बार बार टैम्पून्स और नैपकिन्स खरीदनी पड़ती है उसका कोई आपको टेंशन नहीं है. These cups are tension free. They last for 10 years. It's very easy to use. Just cups. Take a regular size cup, a soft cup, use it. You have to make it in a C shape with the help of 2 fingers. Just separate your labia. आप जो क्या बोलते हैं वजाइना का जो एंट्री पॉइंट होता है लेबिया, जो पर्दे होते हैं 2, उसको जस्ट एक हाथ से सेपरेट करना है और ये जो कप है उसको इंसर्ट करना है. ओनली दिस मच यू हैव टू डू. आफ्टर इंसर्शन के बाद में वो कप वजाइना में बिल्कुल परफेक्टली बैठता है, उसमें कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता है. कप्स रैश फ्री है, नो इरिटेशन विद द कप. एक कप इंसर्ट करने के बाद आप उसको 12 घंटे इस्तेमाल कर सकते हैं. कप्स के साथ में देयर इज नो ओडर, लीक नहीं होता है, स्टेनिंग ऑफ क्लॉथ नहीं है. और कप्स पहनने के बाद जो लेडीज आज तक घर में कन्फाइंड हो जाती है मेंस्ट्रुएशन के साथ while using the regular menstrual products, cup यूज करने के बाद that lady can attend her college, her school, she can run, she can swim, वो एक्सरसाइज भी कर सकती है, योगा भी कर सकती है. There was a webinar yesterday and we have heard about 2 girls, one is a swimmer and one is a runner. वो माउंट एवरेस्ट भी चढ़ सकती है. तो they are perfectly made for the girls, for women of all age group. So I personally want to propagate because they are very promising. आपने अभी सुनाई है कि उसके कितने फायदे हैं, उसको जरूर यूज करिए. एक कप की कीमत सिर्फ 1000 रुपए, 950 से 1000 रुपए, और एक कप चलता है 10 साल. आपने 12 घंटे के लिए उसको इस्तेमाल किया, आप टॉयलेट में जाइए, उसके अंदर जो भी ब्लड आया है, इट कलेक्ट्स योर ब्लड, मेंस्ट्रुअल ब्लड, जो भी ब्लड आया है उसे आप निकाल लीजिए फिंगर अंदर इंसर्ट करके. जस्ट आपका जो भी ब्लड है उसको आप फ्लश कर दीजिए, टैप वाटर से क्लीन कर लीजिए और फिर से इंसर्ट करिए. आपको कोई नई चीज यूज करने की जरूरत नहीं है. आपको 4-5 कप्स भी एट अ टाइम नहीं रखना है, और एट अ टाइम रखना है इट्स योर विल एंड विश. एक कप 10 साल चलता है, अगर 4 कप हमारे 40 साल चलते हैं तो सिर्फ कीमत 400 रुपये है. और जो लेडी 1100 से 1500 पैड पूरे लाइफ टाइम में यूज करती है, सो हर बजट गोज टू द ह्यूज एंड ह्यूज एंड ह्यूज. इट मेक्स अ हिप ऑफ मनी विच जो हमारे आज जो व्यक्ता भी जो लोग सुन रहे होंगे उन्हें समझ में आएगा कि हम सैनिटरी नैपकिन्स और टैम्पून्स पे कितना खर्च कर रहे हैं, विच इज नॉट ऑफ आवर लाइक बॉडी फ्रेंडली. हमारे बॉडी फ्रेंडली नहीं है नैपकिन्स और टैम्पून्स. सो they are promising and one must start telling to their own girls, to their patients, to their relatives and to the surroundings also. It is our duty to make this environment livable and green. Thank you so much. थैंक यू मैडम. क्या मैं ये समझूं कि आपने अभी ये बताया कि मेंस्ट्रुअल कप सस्ता, सुंदर, टिकाऊ ऑप्शन है सभी फीमेल्स के लिए? Yes, yes, definitely, definitely. क्योंकि 40 साल में 4000, what is this? कुछ भी नहीं है. Absolutely, absolutely. Very promising answer from you, ma'am. Yes, as was expected. अब बात पैसों की चली है तो चलिए देखते हैं कि हमारी ये मंथली ब्लीडिंग जो महिलाओं की फिजियोलॉजिकल थिंग है, इससे पैसे जनरेट हो सकते हैं क्या? अगर कोई मंथली ब्लीडिंग के लिए जो साधन इस्तेमाल किए जाते हैं उस पे अगर कोई बिजनेस करना चाहे तो कैन दिस बी एन अपॉर्चुनिटी टू ओपन द गेटवे फॉर एन एंटरप्रेन्योरशिप? क्या हम इससे हमारी पीरियड पॉवर्टी दूर कर सकते हैं या पीरियड इकोनॉमी को अपलिफ्ट कर सकते हैं? मैं जानना चाहूंगी वैशाली वाघमारे मैडम से कि उनकी क्या राय है इस बारे में. वैशाली मैम, वैशाली मैम, क्या आप हैं? यस, एक्चुअली आपकी तरफ से अनम्यूट था. देखिए, मैं थोड़ा सा जो मैडम का प्रीवियस टॉपिक था उसके ऊपर बात करूंगी, इफ यू डोंट माइंड. परमिशन है ना मैम?
जो अभी मेंस्ट्रुअल कप के बारे में बात चल रही थी, एक्चुअली ये जो अवेयरनेस हमें लाना है, मैंने भी इसी टॉपिक को लाके इसी टॉपिक के ऊपर क्लोज किया कि मेंस्ट्रुअल कप के ऊपर अवेयरनेस लाना चाहिए, अवेयरनेस आना भी चाहिए, लेकिन ये एक जैसे 100% में से ऑल ओवर इंडिया में जो रेशो है सैनिटरी पैड यूज करने का वो एक 36% है, राइट? तो 36% के लोगों के पास हम सैनिटरी पैड को लेके जा रहे हैं, और मेंस्ट्रुअल कप को लेके जाने के लिए हमें कितने ये लगेंगे ना, कितने साल लग जाएंगे उस चीज का अवेयरनेस लाने के लिए। तो इस चीज का अवेयरनेस लाने के लिए जितने भी गायनेकोलॉजिस्ट है, क्योंकि ये जो मैडम ने इंसर्शन प्रोसीजर बताई, जो भी चीज बताई वो बहुत ही मतलब बहुत इजी है, बट उस चीज को एक्सेप्ट करना ये हर किसी की मेंटालिटी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी। उसके लिए हमें सभी लोगों ने इकट्ठा आके हेलो यस मैम, कैन यू लिसन टू मी? Yes, ma'am, you can continue. Yes, ma'am. Yeah, I can continue. Yes, Yes. ma'am. We'll have to Yeah. be also looking at the watch. It's almost 5:15 now. We'll have to be a little quick in our answers. Yes, या ma'am. ओके, ठीक है। जो आपने मुझे क्वेश्चन पूछा कि इस चीज को हम एंटरप्रेन्योर की तरह से कैसे देखें, हम अगर मुझे बोला जाता है कि आप इसमें व्यवसाय करोगे क्या, तो डेफिनेटली मैं इस चीज को हाँ बोलूंगी, क्योंकि अगर सैनिटरी पैड एक नीड है सोसाइटी की, जैसे ग्रोसरी नीड है ना, एक हंगर है हमारा, उस हंगर को हमें फुलफिल करना है, तो ग्रोसरी इज अ नेसेसरी थिंग, ग्रोसरी को यूज करना ही चाहिए। तो लाइक एज अ ये भी सैनिटरी पैड, टेम्पॉन, जो भी चीज है वो भी एक नेसेसरी है, और उस चीज को हम हर किसी को लेना ही है। तो अगर मुझे पूछ रहे हो आप लोग कि आप इस चीज को मतलब एक अपॉर्चुनिटी की तरीके से देखना चाहोगे, तो डेफिनेटली मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी बोलूंगी। और हमारी एनजीओ एक मैम जो वाइट डिस्चार्ज के लिए ये रहता है पैंटी लाइनर, उसके बारे में आप सबको पता होगा, सभी को पता है पैंटी लाइनर। मैं उसको आपको शो करूंगी। ये पैंटी लाइनर है, ये बायोडिग्रेडेबल है, इसके अंदर एक एंटीबैक्टीरियल चिप लगाई है जो भी बैक्टीरिया है उसको किल करते हैं। और इसको अगर आप शायद सब लोगों ने देखा भी होगा, और जो भी अर्बन्स में रहते हैं, अर्बन्स के जितने भी लेडीज है या गर्ल्स है, उन सबको पता होगा कि पैंटी लाइनर क्या है। मैक्सिमम एक जो रेशो आप लोगों को पता होगा, आई डोंट नो, कि व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हर लेडीज को रहती है, वो उस चीज में से सफर होती है, लेकिन किसी को बता नहीं पाती उसकी जो भी ऑर्डरनेस है, जो भी चीजें हैं। तो पैंटी लाइनर जो है, पैंटी लाइनर उस चीज से एक रिलीफ देती है। 24 आवर्स पैंटी लाइनर अगर यूज करते हैं तो उनको उसमें से रिलीफ मिलता है। और ये जो है वो पूरी तरीके से बायोडिग्रेडेबल है। और एक मेरा टॉपिक रह गया था, मुझे 1-2 मिनट में मैं उसको फुल कंप्लीट करूंगी। जो डिस्पोजल की बात आ रही है, देखिए मेंस्ट्रुअल कप के लिए हम लोग डेफिनेटली प्रमोशंस करेंगे, हर किसी में अवेयरनेस लाएंगे, बताएंगे कि ये चीज ग्लोबल वार्मिंग के लिए इट्स अ वेरी गुड, मतलब सभी ने इसको यूज करना चाहिए। लेकिन ये कहाँ होगा? एक अर्बन में होगा। रूरल में जाने के लिए जहाँ अभी अवेयरनेस आ रहा है पैड का, तो वहाँ मेंस्ट्रुअल कप के लिए काफी बहुत सारी दिक्कतें, मेहनतें करने के बाद हमें वो अवेयरनेस हम ला सकते हैं। तो हमारे पास एक कंसेप्ट है जो डिस्पोजल के लिए बायोडिग्रेडेबल पैड जो भी रहते हैं वो उस मशीन में डालने के बाद डिग्रेड हो जाते हैं। तो एक औरंगाबाद में एक इंजीनियर है, एक गर्ल है इंजीनियरिंग कॉलेज की, उस गर्ल ने उसको इन्वेंट किया है। और वो जो मशीन है बायोडिग्रेडेबल, जिसको डिस्कार्ड करने वाली मशीन बोलते हैं, तो उसको हम हर ऑफिस में जो भी इंटरेस्टेड लेडीज है उसको वहाँ डिस्कार्ड कर सकती है। तो उसका भी अवेयरनेस हम लोग ला सकते हैं। इसके साथ साथ हमारी एनजीओ एक कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करना चाहती है। जितने भी सोसाइटीज में हमारा वॉलंटियर जाएंगे और जाके उनके पास से जो गार्बेज रहता है सैनिटरी पैड का, जो बायोडिग्रेडेबल है, मैं प्लास्टिक के पैड की बात नहीं कर रही हूँ, जो भी लेडीज है वो बायोडिग्रेडेबल पैड को ही प्रायोरिटी दे। जैसे मैडम ने अभी थोड़ी देर पहले बोला है कि जो पैड जो वो कंपनीज अपना प्रमोशन के लिए कस्टमर को कुछ भी बेच के जाती है, लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट है
सैनिटरी पैड में जो प्लास्टिक का लेयर रहता है उसकी वजह से वो एयर परमिबल नहीं रहता है, उसके कितने कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, जो लेडी उस चीज को यूज कर रही है उसी को पता है, और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको पता भी नहीं कि इसके अलावा भी कोई मार्केट में ऑप्शन है, उस ऑप्शन को मैं यूज कर सकती हूँ। इस बात से तो मैं शायद सभी लोग मेरे सहमत होंगे। तो जो एक अभियान हम लोग चलाने वाले हैं हमारी एनजीओ के माध्यम से, इसकी शुरुआत हम नागपुर से करेंगे और धीरे-धीरे 40 स्टेट में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जितने भी सोसाइटीज है, उस सोसाइटीज में हमारे वॉलंटियर्स जाएंगे, जो यूज किया हुआ पैड है, उस एक बैग हम देंगे, उस बैग में वो डालेंगे और उसको जितने भी कारपोरेशंस है, कारपोरेशंस वालों को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वहाँ एक बायोडिग्रेडेबल मशीन लगाए जिसमें डिग्रेड करते हैं, डिस्पोज करते हैं जो पैड है। तो उसके ऊपर भी हम लोगों का वर्क शुरू है, एक प्रपोजल हमने गवर्नमेंट को ऑलरेडी दे दिया है। अगर ये कंसेप्ट मेरा आप सबको ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज आप इसके ऊपर मुझे ओपिनियन दीजिए। और इतना बोल के मैं अपना वर्ड स्टॉप कर रही हूँ। डेफिनेटली जरूर मैडम, ये अगर आप ऐसा कर पाए तो ये बहुत ही अच्छा होगा, जिससे पोल्यूशन यकीनन कम होगा। और रही बात अगर मेंस्ट्रुअल कप प्रोपगेट करने की, तो हर एक चीज को, हर एक अच्छी चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है मैडम। जी, और इस चीज के लिए गायनोकोलॉजिकल सपोर्ट लगेगा, क्योंकि Yes, एक ma'am. एक गायनिक That's what I was डॉक्टर coming to. अगर बोलते हैं कि नहीं दिस थिंग इज मतलब ये मेडिसिन आपको लेनी है और ये आपको लेनी है तब जाके आप ठीक होगे, तो जो मेंस्ट्रुअल बिल्कुल कप है करेंगे मैडम, हम बिल्कुल करेंगे, कप के लिए भी प्रोपगेट करेंगे और बायोडिग्रेडेबल पैंटी लाइनर्स के लिए भी प्रोपगेट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर थैंक पार्टिसिपेशन। यू मैम, थैंक यू। With this, we are just coming to the end of our panel discussion, and the last question goes to Dr. Swati Wagmare, madam. With so much of discussion around sanitary pads and tampons and panty liners and menstrual cup, madam, do you really think that the number of manufacturing units must multiply to reach every girl who is menstruating, and how the demand and supply can be enhanced? And this will be the last question to the panelists, and with that we will end our discussion. Swati ma'am? Yes. So that's a very important question कि जितना डिमांड है उतना सप्लाई भी होना चाहिए, पर सबसे पहले उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए, और एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए, और मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन करने के लिए जो पैड्स, सैनिटरी नैपकिन्स लगते हैं वो भी उनको खरीदते आने चाहिए, ये सबसे पहली बात। तो उसके लिए घर के अपने यहाँ की पैट्रियार्कल सोसाइटी है, यानी घर के जेंट्स का सबसे इम्पोर्टेंट उसमें हाथ होता है, तो उसने मनी प्रोवाइड करना चाहिए घर के फीमेल्स को, सो दैट दे कैन बाय सैनिटरी नैपकिन्स। तो जैसे कि वो घर खर्चे के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट देते हैं, उसी तरह इस चीज के लिए भी वो एक अपना अमाउंट दे। तो इसके लिए वो मेल्स ने भी जागरूक होना बहुत जरूरी है, तो इसके लिए उनमें भी अवेयरनेस लाने की बहुत जरूरत है, खास करके लड़कों के और पिता के। ऐसे कुछ अवेयरनेस अपन कैंपेन्स लेना चाहिए जिससे कि वो भी उसको प्रमोट करे, और साथ में वही घर में टॉयलेट्स भी आने चाहिए, इसके लिए भी वही पैसा देने वाले हैं और वही तैयार कर सकते हैं। फिर ग्रुप डिस्कशंस हम लोग कर सकते हैं कि उनको अवेयर करें। देन जैसे कि डिमांड ज्यादा है तो उसके लिए उसका सप्लाई भी होना चाहिए, तो कंपनीज आ सकती है, पर ये जरूरी है कि वो दे शुड बी चीप एंड इजीली अफोर्डेबल। इस तरीके से अगर जब बनते हैं तो दैट विल बी बेनिफिशियल। दे शुड बी एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑल्सो, जब जैसे अब तक डिस्कशन हो रहा है कि दे शुड बी बायोडिग्रेडेबल टू प्रिवेंट द हजार्ड्स। और कुछ बैरियर्स ये भी है, लैक ऑफ अवेयरनेस है लोगों में, तो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हम लोगों को और एनजीओ को बहुत मेहनत करनी है।
गवर्नमेंट, NGOs और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स और लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये सब ने मिलके इस मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रमोट करना चाहिए। और इतना मैं कहना चाहूंगी कि सबने मिलके इसके लिए काम किए तो फिर मेंस्ट्रुअल हाइजीन सबकी अच्छी रही। Thank you, madam. With this, I just declare that the discussion is over, but it's yet not over. Now I request all my chairpersons, Suryavanshi madam and Somalwar madam, to kindly please put your expert opinion before we come to an end of this discussion. Suryavanshi ma'am. Thank you, Dipti. At the outset, I thank organizers and especially Dipti for giving me this opportunity. Thank you. Every aspect of menstrual hygiene is almost covered in this program. As a senior gynecologist, I have witnessed 3 generations undergoing menarche. When we were teens, menstruation was a little bit secret affair. In our small town, we had our आई and आजी had a special code word like हुशार होणे किंवा शहाणी होणे. शहाणी आणि ही मुलगी एकदा शहाणी झाली की आजी आणि आई मात्र वेड्या व्हायच्या. कारण आता तू इथे जाऊ नको, तिथे जाऊ नको, हे करू नको अशी बंधनं घालायच्या. असं वाटायचं की एखाद्या उडत्या फुलपाखराच्या पायाला यांनी दोरा बांधलाय नक्की. आणि त्यात त्या थोडंसं फार सांगायच्या मेन्स्ट्रुअल हायजीन बद्दल, पण फॅसिलिटीज खूपच अपुऱ्या असायच्या. सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम असायचा वाळवण्याचा, कारण ती कोणाला दिसायला नको, त्याला सनलाईट तर मिळायचंच नाही. त्याच्यामुळे ज्या काही हजार्ड्स होत असतील त्याच्यातून आमची सर्व पिढीच गेली आहे. नेक्स्ट जनरेशन आय विटनेस ऑफ माय डॉटर्स जनरेशन. हिअर द मदर्स बिकेम व्हेरी एन्थुझियास्टिक, केअरफुल, and they even referred the books and they were so enthusiastic to tell the daughters about menstruation. इतक्या enthusiastic होत्या की एक तर माझ्या पेशंटची आई मला एवढी वाईट वाटत होतं तिला की मॅडम मी इतकं छान सांगणार होते हो माझ्या मुलीला, पण ते शाळेवाल्यांनी सगळं आधीच सांगून टाकलं. So was the enthusiasm in that generation. And the young generation now coming to my OPD, they are very thorough in their knowledge of physiology of menstruation, what are the gadgets to be used, how it should be hygienic, and I think it's a positive change. And for this positive change, we gynecologists can definitely share the credit. But it doesn't finish our responsibility. We can't avoid our responsibility as a gynecologist to educate them, educate the anxious teenager about these physiological changes and how to be hygienic in the menstrual period. Once more, I thank organizers and very good and all the panelists for their nice presentation. Thank you. Thank you, madam. It was such a wonderful description of everything. आणि तुम्ही जे सांगितलं ते अगदी शब्दशः खरं आहे. आई आणि आजी तसंच म्हणायची, आता हे नाही करायचं, आता ते नाही करायचं. With this, I would like all our panelists to just convey. नाही मॅडमला सांग ना. Just अच्छा. Yeah, Somalwar ma'am. हा. Somalwar ma'am. Would like to hear from you, your expert opinion. Ma'am? Somalwar ma'am? Yeah. Can you hear me now? Ma'am, yes, ma'am. I want to tell one case that is very important, just in a short. We had around 6 to 7 years back one patient who has delivered at home. Okay. And then she came around on day 9 or 10 with the complaints that she is having some movement like inside the vagina. There is some itching at the local parts. And when we examined, there were maggots
inside the vagina, maggots. So on inquiry, she was saying that she was using home pads. Okay. She was using home pads which were dried on the, like in the backyard, she must be drying it. So the etiology may be the flies have laid some eggs and she was using the same pad. So if the home pads are used, I think they should be iron if before they are reused, or otherwise they should be disposed of and the new pad should be used. That patient was treated with antibiotics and local turpentine was used to be given, douching of the vagina. Okay. And everyone used to, whoever was giving douche used to vomit. So that site was so bad. The maggots used to come out. So if the home pads are used, then the ironing should be done, or either you should throw it and again use the newer ones. That is the one thing. And another thing I want to tell you is the more awareness is required in the villages. Whatever the Vaishali madam and all the panelists have said, that the urban there is awareness, but the awareness should be created in the villages, especially the elders, so as to remove the taboos. They should be advised to take daily bath, and we should talk with the girls, with the women, support them at various places where they are. Like school में उनको support देना चाहिए. With all have discussed, nice water and the soap should be available, so that they will not be, that they are not going to school. So support should be given. And I think not only the days, only support should be given on the particular day. It should be throughout the year. That's what I want to say. So local hygiene should be maintained properly. Even the home pads are used, cleaning, and next important thing is douching of the vagina by the patient should never be encouraged. They may use Dettol, which is very strong, and then that can damage the normal inhabitants of the vagina. उससे और ज़्यादा infection हो सकता है. इसलिए concentrated douching with various antiseptic solutions should be discouraged. That's what and it was a very nice discussion. All points are discovered. Everyone was very fabulous. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. But this maggot story gives a little very disheartening experience. Yeah. अभी भी ऐसा हो सकता है, तो हम जितना कर रहे हैं वो कितना कम है. Yeah. So और बहुत ज्यादा more awareness, especially in the interior as well. Yes, ma'am. Totally agree. With this, I would like all our panelists to convey the take-home message for our audience in a single line, if they can do so, because already we have just running short of time now. मेरा कहना यह है कि अपन प्रिविलेज्ड है कि अपने को सैनिटरी नैपकिन्स मिल रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उसको डिस्पोज कैसे करना है उस पर ध्यान दिया जाए. Thank you, ma'am. Demre ma'am? Yes, I would say girls are born with period power. They are very fortunate. Bleed with dignity and responsibility. Make our environment green. Thank you, ma'am. Sir, Milind Mandlik, sir. Are you there? He's unmuted. Ma'am? He's muted. Unmute. Yeah, if men and boys at home are also made aware about this problem, the problems of future generation of future females would be less. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Vaishali ma'am? Yeah. Actually, ये जो टैबू सब्जेक्ट है इसको सभी ने मिलके सॉल्व करना है, वन थिंग. और जो मैम ने बताया है कि एक जो ये होना चाहिए, मतलब जो रिलेशन जो है, जो जनरेशन गैप है, अगर जनरेशन गैप को हम क्लोज कर दे तो ये इट कैन बी पॉसिबल. Yes, ma'am, definitely. And Swati ma'am? Parents and teachers play a very important role in the life of children, and they should promote menstrual hygiene positively. Thank you, madam. Few lines just to express what we have discussed throughout this 1.5 hours is, ध्यान दीजिएगा, यह कोई कुकर्म नहीं, प्रकृति का नियम यही, इसमें उसकी गलती नहीं, उसके दर्द का एहसास नहीं, मुश्किल दिनों में साथ नहीं, फिर
क्यों मजाक बना रखा है, क्यों अपवित्र बना रखा है, जब जीवन का है आधार यही। फिर क्यों मंदिर मस्जिद में प्रवेश नहीं, जाने की रसोई में इजाजत नहीं, ये छूना नहीं वो छूना नहीं, सोच में आज भी कोई बदलाव नहीं। पीरियड्स के नाम से कतराते हैं, मानो जैसे पाप है ये, हमारे अस्तित्व का कारण है ये। सोच बदली है कुछ, सोच बदली है कुछ, पर अभी भी वो बात नहीं, कुछ बदलाव अभी लाना है, काली प्लास्टिक से उसे बाहर निकालना है। मासिक धर्म से हूं मैं, कहने में कोई शर्म नहीं, मासिक धर्म से हूं मैं, कहने में कोई शर्म नहीं। With this, I really thank for Dr. Alka ma'am and Ashish Kubde sir for giving me this opportunity, and a very special heartfelt thanks to all the panelists who participated in this discussion, and I feel so honored to have spent this time with all of you. Thank you, ma'am. It was an excellent recitation